a huge success. For you all to know, the only objective of Aadharshila Talks is to encourage interaction amongst educators and to create a platform where educators can learn from people with more experience, with more relevant experience, and from each other. I hope we have been able to serve the teaching fraternity in the best possible way, and we'll keep improving and just keep supporting, keep guiding, keep sharing your suggestions. They're always welcome and they would help us do better with each Aadharshila talk. We are very thankful to all the speakers, all the 18, 19 speakers who have been with us since the journey started, who have guided all the attendees with a lot of wisdom. It has been possible only because of their support, their interest in sharing their wisdom with their fraternity. So thanks to each one of you, right from the speakers to my colleagues who make it possible at RIAS, the technical team, the teaching staff, the non-teaching staff, and all the educators from all around the country who join us every Monday. A huge thank you to all of you. So today's talk is going to be wonderful. We are waiting for Mr. Deepak Tiraya ji to join us. Ma'am, Deepak sir is already here. Okay, so Deepak ji has joined. Yeah, I'm in, ma'am. I'm in. Hello. Namaskar. Namaste, sir. So Namaste. by what name have you joined? Because I was checking for the name, Deepak. Basically, I joined in from my son's laptop, Kartum Teraiya. So What's the name? On the name of Kartum. Kartum. Okay. Yeah. So, dear friends, you can check under people, Kartum. So, Deepak ji, a warm welcome to you. Good Thank you. evening. Namaste. It's a Thank you. privilege to have you with us today. So, it's sharp 4, and I thank you for being here before time. I thank all the participants also for being with us right on time. Thank you so much. Let me now formally begin with the introduction of today's guest. Deepak Tiraya ji. I request my technical team to kindly display it on the screen. Ma'am, it's showing up already. Okay, thank you. I hope all the participants can see it. I request all the participants to kindly keep themselves on mute. And if they have any questions, suggestions, thoughts to share, please type in the chat box. So today's speaker, Professor Deepak Tiraya, an eminent educator who takes on various roles, right, as a facilitator to trainer to consultant and motivational speaker for a diverse spectrum of individuals that is ranging from teachers to students and organizations like the government, NGOs, and corporates. Professor Deepak ji has led several significant initiatives in the government sector as an advisor for the Children's University, an officer on special duty for the Teachers University, the project officer for Gujarat Council for Education, among several others. He has worked for NGOs like Gujarat State AIDS Control Society and the Regional Community Science Center. With expertise as a school psychologist, Professor Deepak has co-authored 3 books with Mrs. Uma Tiraya and currently heads the organization Uddeepak Learning Solutions. So my acquaintance with Deepak ji goes a few years back, and I have attended some of his sessions on experiential learning that has given so much of insight to me as an educator. And since then, I wanted my staff to also get enlightened from his wisdom and experience. And today, during the lockdown, through technology, God Almighty has made it possible. One of my dreams comes true, and we have Deepak ji interacting with not only my staff, but teachers from all across the length and breadth of this country. So we are so grateful for your presence here and for accepting our request, our invitation to address the educators. I now request you to take over. The stage is all set for you. It's all yours now. I request the participants to keep themselves on mute, please. Yes, Deepak ji, please go ahead. Thank you once again. Thank you, Jaya ji, for nice introduction. अपना परिचय जब हम सुनते हैं तो लगता है कि अपनी शोक सभा में बैठे हैं कि दीपक जी कितने अच्छे आदमी थे. Yeah, this is on fun side. Basically, काफी बार मैं
प्रोफाइल और बायोडेटा सीवी के बारे में ये कहता हूं कि प्रोफाइल और बायोडेटा एक्चुअली हम खुद ही बनाते हैं, और वो वहां से बनाते हैं कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये रिसर्च पेपर मैंने किए हैं, ये मैं पढ़ाई किया हूँ, वगैरह वगैरह। और उस बायोडेटा को हम प्रोजेक्ट करते हैं। मुझे बताने में बहुत खुशी भी हो रही है, और ये कोई सीक्रेट बात नहीं है जो मैं शेयर कर रहा हूँ, कि 3-4 दिन पहले जया जी ने ही मुझे कहा था कि आपका एक प्रोफाइल मुझे भेज दीजिए ताकि हमें इंट्रोडक्शन देने में आसानी रहे। तो वो फॉर्मल टाइप का इंट्रोडक्शन हो गया। लेकिन आज जिस मुद्दे पे, जिस पॉइंट पे आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट, कि शिक्षक की जीवनशाला या लाइव स्कूल ऑफ ए टीचर, जीवंतशाला। तो जिंदगी एक पाठशाला की तरह, उसकी बात मुझे करनी है। तो मैं ये कहूंगा कि एक परिचय फॉर्मल हो गया, और दूसरा परिचय आपको करीबन ये सेशन जब खत्म होगा चंद मिनटों के बाद या एक आध घंटे के बाद, तब आप सब लोग कह पाएंगे कि जो परिचय हमने सुना, अब उसको भी हमने सुना। अब दोनों को आप इवेल्युएट करेंगे, और हम लोग टीचर से मार्क्स देने वाले लोग हैं। भगीरथ जी वेलकम। तो मार्क्स देने वाले लोग हैं, पास फेल वाली सिस्टम के लोग हैं। तो आप फिर इवेल्युएट कर पाएंगे कि जो परिचय सुना वो बंदा उससे बेहतर था या फिर उससे थोड़ा डाउन था। तो परिचय सच में तभी होता है जब हम किसी को मिलते हैं। एंड लेट अस बिगिन। मुझे ये लग रहा है कि आज का जो सेशन है मुझे यही कहना है कि एट द एज ऑफ 46 में जो भी सीखा हूं, बीइंग ए टीचर नहीं, बीइंग ए लर्नर, एक स्टूडेंट की तरह जो सीखा हूं, उसमें से चंद चीजें आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि जिस साल में मेरा बर्थ डेट है उतने पार्टिसिपेंट यहाँ पे मौजूद है, 73। तो मैं भी 73 में पैदा हुआ हूं, तो जो जन्म से लेके शुरू करना है जितना याद है, लेकिन कुछ पॉइंट्स तो मैं ऑब्जेक्टिव इस सेशन का इस तरह से शेयर करना चाहूंगा कि जो भी मैं सीखा हूं वो एप्रीहेंशन से नहीं सीखा, मैं ऑब्जर्वेशन से ज्यादा सीखता हूं। तो आज जो भी मैं बात करूंगा, क्योंकि हम सब एक ही फ्रेटर्निटी के लोग हैं, आप सब लोग टीचर्स हैं या टीचिंग लर्निंग के फ्रेटर्निटी है। मैं भी ट्रेनर हूँ, टीचर था ऐसा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे ट्रेनर के डोमेन में टीचर से ज्यादा मजा आने लगा है, और फैसिलिटेशन मुझे टीचिंग से ज्यादा अच्छा लगता है। और काफी बार मैं हंसते हंसते ये कह देता हूँ, शायद आप में से काफी लोगों को चोट पहुंचेगी इस सेंटेंस से, कि मैं एजुकेशन को इसलिए ज्यादा अच्छे से समझ पाया हूं क्योंकि मैंने बीएड और एमएड नहीं किया। अब थोड़ा सा आप रिफ्लेक्ट कीजिए इस सेशन पे, क्योंकि जो बीएड और एमएड ने हमें सिखाया है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी और ये सब पढ़ाया है, और जो जिंदगी हमें सीधा देती है, और वो जो सीखा है, तो मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस शेयर करूंगा। तो आज का जो सेशन है उसका ऑब्जेक्टिव मुझे लगता है कि मैं अपने अनुभव कहूंगा, और आप अपनी जगह से अपने लाइफ को डेफिनेटली, आपके रोंगटे भी कई जगहों पे खड़े हो जाएंगे, पॉसिबली आपको रोना भी आ सकता है, पॉसिबली आप बहुत जोर जोर से वहां बैठे बैठे अपने घर पे या जहां पे भी आप ऑफिस में बैठे हैं वहां शायद हंसने लगे जोर से, कोई आपको पूछ ले कि क्या सुन लिया। मुझे पता नहीं क्या होने वाला है। गब्बर के ताप से एक ही आदमी बचा सकता है, वो है खुद गब्बर। शोले का ये मशहूर डायलॉग आज मैं इस सेशन ऑब्जेक्टिव के जरिए इसलिए बता रहा हूं कि एक एजुकेटर की तरह हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, और उस जिंदगी से हम कितना सीखते हैं, लाइव क्लासरूम से, लाइव पाठशाला से हम कितना सीखते हैं, और वो हमारे जीवन में आता है। और उसके थ्रू मैं जब क्लास में जाता हूं तो मेरे स्टूडेंट्स, मेरे ट्रेनीज, मेरे पार्टिसिपेंट्स, वो मुझ में से क्या लेते हैं, मुझ में से क्या पकड़ लेते हैं सीधा। तो आपको भी ये तय करना होगा 5 बजे कि इस सेशन में से कितना ट्रांसफर हुआ। अपने आप पता नहीं चलेगा, अपने आप चला जाएगा, क्योंकि मैं अच्छा 80,000 सैलरी से काम कर रहा था जब मैंने जॉब छोड़ा। 9.25 साल में कॉलेज में प्रोफेसर रहा, 9.25 साल में 5 डेप्यूटेशन आए, जो बताए ऑलरेडी जया जी ने। लेकिन उसके बाद मुझे पर्पस ऑफ लाइफ मुझे पता चला कि उमा जी और दीपक जी कोई सेशन में जाके बात करते हैं जिसमें कोई रिलेशनशिप वाली बात हो, और रिलेशनशिप के कुछ बेसिक्स उसमें बताए हो। लोगों ने एक छोटी सी फिल्म देख के आंख में आंसू के साथ वो सेशन अटेंड किया, और उसी शाम कोई बंदा बाइक लेके अपने इन लॉज के घर चला जाए, क्योंकि उनकी वाइफ जो है वो 6 साल से वहां रहती है।
डिवोर्स का कोर्ट में केस चल रहा है, 3 साल से दोनों अलग रह रहे हैं और इतने सालों से मिले नहीं, सिर्फ कोर्ट में मिलना होता है। और सडनली सेशन में कुछ रियलाइजेशन हुआ और बंदा बाइक लेके 250 किलोमीटर दूर अपने इन-लॉज के वहां पहुंच जाता है। वहां लोग बिल्कुल दुश्मन की तरह हो चुके हैं, तो इन-लॉज वालों ने कहा कि यहाँ क्यों आए हो, कोर्ट में आना। तो उसने हाथ जोड़ के कहा कि मुझे 5 मिनट के लिए अपनी वाइफ से बात करनी है प्लीज। तो उनकी वाइफ, उनकी बीवी आई, वो भी बहुत खफा थी। बोले यहाँ क्यों आए हो, चेहरे पे गुस्से की लकीरें। तो बोले तू मुझे 5-7 मिनट दे दे, मेरे साथ चल, मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पिला के थोड़ा बात करके वापस छोड़ जाऊंगा। वो उनकी वाइफ का छोटा भाई, लड़की का छोटा भाई साथ में आया, वो थोड़ा दूर बैठा और ये शॉप पे बैठे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। और 2 मिनट में बंदे ने कहा कि यार आई एम सॉरी, मुझे इतना समझ में आ रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ जीना है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, जो भी गलतियां है मैं कबूल करता हूँ, माफी मांगता हूँ, जो भी 2-3 सेंटेंस में। और वहीं पे वो 5 मिनट के अंदर ही जो उनकी वाइफ थी वो कोल्ड ड्रिंक वहीं छोड़ दी और छोटे भाई को बोली मैं चली अपने घर, मेरा सामान और मेरा मोबाइल फोन भिजवा देना। और दूसरे दिन सुबह वो कपल हमारे घर पे आ गए। अब मॉर्निंग में 8 बजे अनएक्सपेक्टेड वे से डोरबेल बजी, तो मैंने दरवाजा खोला तो वो मिठाई का डब्बा लेके खड़े थे और उन्होंने कहा कि सर अब हम साथ साथ हैं। कोर्ट से तो हम एप्लीकेशन बाद में वापस लेने जाएंगे, लेकिन सोचा पहले आपसे मिल लें। ये मैंने एक इंसिडेंट इसलिए आपको बताया, ऐसे बहुत सारी घटनाएं मेरे साथ, उमा जी के साथ घटने लगी। तो हम लोगों ने सोचा कि सिर्फ क्लासरूम में पढ़ाने के बजाय हम चौक में खड़े होके चिल्ला के पढ़ाना शुरू कर दें, क्योंकि क्लास तो बहुत बड़ी है, जरूरतें बहुत बड़ी है और ईश्वर ने हमें चुना है अगर इस लाइफ चेंजिंग प्रोसेस को सीखने सिखाने के माध्यम के लिए, तो क्यों ना ये काम किया जाए। और आप में से काफी लोग अभी जो जिस बारे में चिंतित हो गए कोरोना की वजह से कि क्या हमारा मैनेजमेंट हमें सैलरी पूरी देगा कि नहीं, सैलरी मिलेगी या नहीं, जॉब कंटिन्यू रहेगी या नहीं, जो भी इनसिक्योरिटीज लग रहे होंगे आपको, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मैंने जब जॉब छोड़ा, मैंने वॉलेंटरी रिजिग्नेशन दे के 23 साल का गवर्नमेंट का सिक्योर जॉब, रिटायर करता तो 3 लाख 4 लाख की पेंशन मिलती शायद, वो जॉब मेरे बैंक में सिर्फ 68,000 थे, तब मैंने छोड़ दिया, आई लेफ्ट माई जॉब। लेकिन मुझे पता था कि मेरी लाइफ मुझे कहाँ ले जा रही है और उसमें से ही कुछ बिंदु, कुछ पॉइंट्स आज आपके साथ शेयर करना है। तो आज के सेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि लाइफ स्कूल ऑफ ए टीचर और लाइफ स्कूल ऑफ ए टीचर, शिक्षक की जीवनशाला क्या है। तो ऑब्जेक्टिव में मुझे इम्तियाज अली की फिल्म रॉकस्टार का एक बहुत बढ़िया गाना जो हम सब ने सुन रखा है, और उसका एक छोटा सा स्टैंजा मुझे इस सेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए बिल्कुल सही लगता है। बढ़िया से हमने वो गाना सुना हुआ है, कदम बढ़ा ले हदों को मिटा दे, और उसमें एक छोटा सा, क्यों बोल रहा हूं मैं, पता नहीं कितना अच्छा गाता हूं, लेकिन मुझे लग रहा है एक लाइन से मैं आपसे ये ऑब्जेक्टिव शेयर कर दूं। मुझ पे करम सरकार तेरा, अर्ज तुझे कर दे मुझे, मुझसे ही रिहा, अर्ज तुझे कर दे मुझे, मुझसे ही रिहा, क्यों अब मुझको दीदार मेरा, अब मुझको भी हो दीदार मेरा, मुझे मेरे तो दर्शन हो, क्यों आया हूं इस दुनिया में वो तो पता चले। तो यहाँ पे मुझे आप सबके लिए एक सवाल शूट करना है कि आप कितने साल से टीचर हो। अब अपने आप से जवाब दीजिए, आप माइक्रोफोन ऑन मत कीजिएगा शायद, क्योंकि वो लंबा डिस्टर्बेंस हो जाएगा, लेकिन खुद को बोलिएगा। कोई बोलेगा मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस, कोई बोलेगा मेरा 10 साल का, मैं 8 साल से, मैं फ्रेशर हूँ, कोई बोलेगा 30 साल से एजुकेशन में हूँ। तो वो पढ़ाते पढ़ाते कहीं हम ये तो नहीं बोलने लगे कि यस 30 साल से मैं इस क्षेत्र में हूँ, या 30 साल सीखने को हो गए। तो वो जो अनुभव है आपका, उसमें अब तक आपको अगर अपना दीदार हो गया है, तो ये जॉब आपको कभी फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकती, ये जॉब आपको कभी इनसिक्योर नहीं कर सकती। और इसलिए उन मुद्दों को मैं कभी एप्रीहेंशन से नहीं सीखा, मैं ऑब्जर्वेशन से सीखा हूं। तो इसलिए कुछ ऑब्जर्वेशन शेयर करके आपके साथ बात करना शुरू कर रहा हूं। और शुरू करते हैं हम, क्योंकि अभी यहाँ मुझ पे करम
सरकार तेरा ऐसा याद आया, तो लेट स्टार्ट विथ अल्लाह का दरबार, क्योंकि आज के सेशन में आई एम जस्ट फ्लोइंग विथ माई फ्लो एंड फॉलोइंग विथ माई फॉल। मेरे दिल से, मेरे हृदय से जो आवाज आएगी और जो शिक्षा, जो इस क्षेत्र में रहने की वजह से मुझे जो जिंदगी में सीखने को मिला, वो खजाना मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ। एंड डेफिनेटली ये बहुत ही मेमोरेबल सेशन रहेगा, ये मैं अभी से कह सकता हूं। ये मुझ पे खुद पे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे उस प्रोसेस जिसकी बात मैं करने वाला हूं उस पे बहुत कॉन्फिडेंस है। ये प्रेयर्स की जितना पावरफुल है। तो जॉब छोड़ा और मैं उद्दीपक लर्निंग सॉल्यूशंस, उमा और दीपक, उद्दीपक और उद्दीपक मींस कैटालिस्ट। एक ट्रेनर का रोल है, कैटालिस्ट का रोल है कि बिना प्रक्रिया में हिस्सा लिए किसी के जीवन में बदलाव आए। आज भी हम देखेंगे कि 1 घंटे तक का ये सेशन है, शायद 5-10 मिनट ओवरशूट कर ले हम, लेकिन 1-1.5 घंटे के इस सेशन के दौरान या बाद में अगर आपको ये लगे कि यस कुछ एनरिचमेंट फील हुआ, लाइफ में कुछ चेंज हुआ, किसी से बात करते वक्त वो आपको नोटिस होने लगे कि यस ये बात मुझे चेंज करनी है, तो उद्दीपक कैटालिस्ट का काम हुआ। अगर आपको ये सिंपल एक भाषण लगे तो आप मुझे प्लीज एक एसएमएस कर दीजिएगा कि दीपक जी ये ऐसा मुझे लगा कि आपने सिर्फ भाषण कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो शायद मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं इस क्षेत्र से निकल जाऊंगा। और ये गारंटी मैंने बहुत सारे सेशंस में दी है, आईएएस ऑफिसर जजेस के सेशंस में भी दी है, और आज तक मुझे अपना क्षेत्र छोड़ने की नहीं, उसमें और ज्यादा अंदर उतरने की नौबत आई है। तो लेट अस स्टार्ट विद अल्लाह का दरबार। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बहुत ट्रैवल करता हूं। अभी लॉकडाउन की वजह से पिछले 3 महीने से घर पे बैठे ही ट्रैवल कर रहा हूं, जैसे कि आज मैं महाराष्ट्र की सैर पे हूं, लेकिन फिजिकली मैं बहुत ट्रैवल करता हूं, बहुत घूमना रहता है मेरा अलग अलग ट्रेनिंग में। तो एक बार मुझे मध्य प्रदेश रीवा में पुलिस ऑफिसर्स के ट्रेनिंग के लिए जाना था। अब रीवा जो है वो, अगर मैं गुजरात से गांधीनगर से ट्रैवल करूं तो रीवा यूपी बॉर्डर बहुत लास्ट में जाता है, तो बाय रोड बाय ट्रेन मुझे बहुत लंबा रास्ता पड़ता है। तो मेरा शेड्यूल उस तरह से प्लान हुआ कि मैंने दिल्ली तक का फ्लाइट लिया, और दिल्ली से ओवरनाइट ट्रेन जो सुबह मुझे झांसी पहुंचाए, झांसी से मुझे वो यूनिसेफ का एक गाड़ी लेने के लिए आने वाला था, जो मुझे वहां से भी 4 घंटे का रास्ता, रीवा 175 किलोमीटर, बट रोड्स आर वेरी बैड। तो मैं वहां पहुंचूंगा, सेशन खत्म करूंगा और उसी रूट से वापस आऊंगा। दैट वाज माय ट्रैवल प्लान। मैं निकल गया यहाँ से, रात को 11 बजे दिल्ली पहुंच गया, दिल्ली से ट्रेन में बैठा, सुबह झांसी, झांसी से वो इनोवा में बैठ के 11 बजे मैं रीवा पहुंचा। सिर्फ चाय पीने का टाइम रहा, नाश्ता नहीं कर पाया, सीधा क्लासरूम में, क्योंकि टाइम हो चुका था। पूरा दिन पुलिस ऑफिसर्स के साथ ट्रेनिंग किया, शाम को इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि कुछ थोड़ा नाश्ता वास्ता पैकेट दे दीजिए, उसी रूट से वापस जाना था। मेरी वहां से ट्रेन थी वापस जाने की, तो उसी तरह से मैं निकल गया वहां से। 2 कांस्टेबल मुझे छोड़ने के लिए आए, पुलिस में ये सब होता है बहुत प्रोटोकॉल, तो वो झांसी तक आए मुझे छोड़ने के लिए। झांसी रेलवे स्टेशन हम 9 बजे पहुंच गए और मेरा 10:50 का ट्रेन था रात को। तो 9 बजे हम पहुंच गए, तो 10-15 मिनट हुए, चाय पिया, और फिर मैंने दोनों कांस्टेबल को कहा कि अब आप लोग जाओ वापस, आपको 4 घंटा वापस जाना है, रात आधी रात हो जाएगी। तो वो ऐसे खड़े थे, बोले नहीं सर, हमको ऑर्डर मिला है कि आपको बोगी में आपके बर्थ पे बिठा के हम जाएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ा डिटेल में जाके बताऊंगा, क्योंकि वही प्रोसेस के माइलस्टोन उसमें से निकल के आएंगे फिर। तो बोले आपको बर्थ पे बिठा के जाना है। तो मैं हंसने लगा, मैंने बोला भैया मैं एडल्ट आदमी हूँ, वयस्क हूँ, अपना 42 नंबर का बर्थ में खुद ढूंढ लूंगा, आप क्यों परेशान हो 1.5 घंटे तक, आप जाओ। लेकिन वो माने नहीं, तो मैंने उनके बॉस एसपी को फोन लगाया, मैंने बोला इनको वापस भेजिए, मैं सुखरूप पहुंच गया। एसपी साहब ने बोला आप लोग निकलो, वो चले गए, मैं आराम से बैठा। फिर मुझे थोड़ी भूख लगी, तो मैं नजदीक में ही झांसी रेलवे स्टेशन, अगर आपने देखा है तो वहां पे रेलवे का बहुत ही अच्छा एक काफे है, रेस्टोरेंट है, तो मैं रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। एसी रेस्टोरेंट था। मैंने, हम लोगों की आदत है पूरा मेनू पढ़ने के बाद हम मसाला डोसा ऑर्डर करते हैं। आप में से कई लोगों का एक्सपीरियंस ये रहा होगा कि होटल में जाते हैं, मैक्सिकन, थाई, पंजाबी, साउथ इंडियन सब पढ़ने के बाद आप पनीर टिक्का ही मंगाते हो। तो मैंने भी वही साउथ इंडियन डिश ऑर्डर कर दिया। तो एक प्लेटर आया, प्लेटर में एक डोसा, 2 इडली सब था। प्लेटर लेके मैंने सोचा कि कोई अच्छी लोनली टाइप जगह हो, शांति से बैठ के खाना खा सके। तो एक खाली वाला टेबल ढूंढा जहाँ पे कोई नहीं बैठा था, वहां बैठ के जैसे मैं खाना शुरू कर रहा हूँ, एंड द मोमेंट बिगिंस, मैं खाना शुरू ही करने वाला था, तो मेरा ध्यान गया कि रेस्टोरेंट के बाहर, क्योंकि वो कांच का दरवाजा था, तो बाहर मैंने देखा स्टेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर
8-10 कूली नीचे बैठ के राउंड में बैठ के अपना टिफिन अपना डब्बा खा रहे थे और उनका भी खाने का वक्त था। तो एक टीचर को एक्सपेरिमेंटेशन करने की बहुत जरूरत है। वो अपने कंटेंट के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशंस करते रहते हैं कि ये टॉपिक को मैं कैसे पढ़ाऊं। तो मैं भी बचपन से मेरी एक आदत है कि मैं ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन में बहुत बिलीव करता हूं। मैं अनुभव से ज्यादा सीखता हूं। तो मैंने सोचा, एक दिमाग में आइडिया आया, आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो मैंने वो अपना प्लेट उठाया और मैं दरवाजे की तरफ गया। मैनेजर को मैंने बीच में पूछा कि क्या मैं बाहर बैठ के खाना खा सकता हूँ। तो मैनेजर साहब बोले कि शौक से खाइए, मुझे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन प्लेट वापस करना। मैंने बोला जी जी वो तो मैं करूंगा। और मैं बाहर गया और वो लोग आराम से राउंड में बैठ के खाना खा रहे थे। तो मैं एक बंदे के ऐसे पीछे खड़े होकर मैंने कहा कि क्या मैं आपके साथ खाना खा सकता हूँ। जैसे ही मैंने पूछा तो एक कूली जो वहां बैठा था उसने ऐसे घूम के मेरे सामने देखा और वो तुरंत उसने जवाब नहीं दिया, वो खिसक गया, उसने जगह बना ली मेरे लिए। और उसने ये कहा कि सर बैठ जाइए, कहीं पे भी बैठ जाइए, सब अल्लाह का दरबार है, मेरा क्या है। ये शब्द जब भी मैं बोलता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने क्या महसूस किया उस टाइम पे। उसने कहा सर मेरा क्या है, सब अल्लाह का दरबार है, कहीं पे बैठ जाइए। ये प्लेटफॉर्म मेरा कहाँ है, ये दुनिया आप सबकी है, हम सबकी है। कहीं तो जगह हो गई, मैं बैठ गया। अब खाना शुरू होने वाला था, लेकिन जैसे ही खाना शुरू करे उससे पहले तो एक दो कूली ने अपना डब्बा मेरे आगे कर दिया। बोली देखिए सर ये खाइए, ये चटनी चखिए, ये सिर्फ यहाँ हमारे यूपी में बनती है, आपने कहीं नहीं खाई होंगी। तो मैंने उसमें से लिया। तो किसी ने पराठा दे दिया, किसी ने मुझे मूली का अचार दे दिया थोड़ा सा। तो मैं सब में से टेस्ट करने लगा। फिर याद आया कि मुझे भी ऑफर करना चाहिए। तो मैंने कहा अरे आप भी लीजिए इसमें से। तो एक 22-23 साल का कूली होगा, उसने थाली देके कहा ये कौन खाएगा। मेरे 200 रुपये की डिश की वहां चटनी और रोटी के साथ कोई वैल्यू नहीं थी। उसने कहा ये कौन खाएगा। तो उनके डब्बों में से मैं थोड़ा थोड़ा खाने लगा। और मीनवाइल मैंने देखा कि थोड़ी दूर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप खाना खाना चाहती है। तो बोले हाँ। तो मैंने अपना प्लेट उधर खिसका दिया और उन्हीं के डब्बों में से मैंने थोड़ा खाना खा लिया। बड़ा अच्छा लगा, कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। प्लेटफॉर्म पे कुली के साथ बैठ के मैंने खाना खाया। एक दो फोटोग्राफ्स लिए और फिर वो प्लेट लेके वापस दिया मैंने। थोड़ी देर में मेरी ट्रेन आ गई। ट्रेन में मैं अपना 42 नंबर के बर्थ पे जाके बैठ गया, बिछौना बिछाया। अब मुझे सो जाना था। डायरी निकाली, लर्निंग डायरी निकाली कि आज के अनुभव में क्या क्या हुआ। खुद से सवाल खुद से जवाब, खुद ही से सवाल खुद ही से जवाब। तो डायरी में मैंने लिखा कि आज बड़ा अच्छा लगा, ये अल्लाह का दरबार। और मैंने वो सेंटेंस बड़े से लिखा कि सर कहीं पे भी बैठ जाइए, सब अल्लाह का दरबार है, मेरा क्या है। और वो पूरी घटना, पूरा इंसिडेंट मैंने डायरी में लिखने के बाद मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा कि मैं रेस्टोरेंट में बैठा था, एसी रेस्टोरेंट में, वहां से जाके मैंने बाहर जाके उनसे पूछा। माय डियर फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, सारे 90 के 90 पार्टिसिपेंट्स ध्यान से सुनिएगा। मैंने उसको पूछा कि क्या मैं आपके साथ खाना खा सकता हूँ। और मुझे जवाब मिला सब अल्लाह का दरबार है, मेरा क्या है, कहीं पे भी बैठ जाइए। लेकिन मैंने सवाल पूछा कि मैं रेस्टोरेंट से बाहर नहीं निकलता, मैं उधर ही बैठा रहता, और उसमें से कोई एक कूली उठ के रेस्टोरेंट के अंदर आता अपना डब्बा लेके, और वो मेरे टेबल के सामने बैठ के हमें ये पूछता कि सर क्या मैं आपके साथ खाना खाने बैठ सकता हूं। तो मेरा जवाब क्या होता। और उस दिन डायरी में मैंने लिखा कि शायद मैं फेल हो गया, क्योंकि मेरा जवाब शायद हाँ नहीं होता। क्योंकि वो जब अंदर आके मुझे पूछता कि क्या मैं आपके साथ खाना खाने बैठ सकता हूं, तो शायद मेरा जवाब ये हो सकता था कि यार बहुत सारे टेबल से, कहीं और बैठ जाओ। शायद मैं उसके पसीने से बदबू भरे कपड़ों की बदबू सूंघ के बता देता कि तुम यार कहीं और बैठो, या मैं यहां से उठ जाता हूं, आप यहां बैठो। सब अल्लाह का दरबार है, वो उसके पास है, मुझे तो काफी सीखना बाकी है। तो मेरा ये लंबी कहानी का छोटा सारांश ये है माय डियर फ्रेंड्स, कि बीइंग ए टीचर हम जब काम करते हैं तो हम ये पाते हैं कि सिखाने वाला ज्यादा सीखता है और सीखने वाला हमेशा सिखा के जाता है। हर साल आपके क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आ जाते हैं जो आपके गुरु होके आते हैं, वो आपको सिखा के जाते हैं, और वो हमारे लाइफ के जीवन में, हमारी पाठशाला में एक नए चैप्टर की तरह ऐड हो जाता है और हम और अच्छे टीचर बन जाते हैं।
हम और सयाने और लॉजिकल और इमोशनल और हार्टफुल बन जाते हैं। और इसलिए ऐसी घटनाओं से अपने आप को ढूंढते ढूंढते हमें एक रास्ता निकालना है। आप भी ढूंढिएगा कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में, इवन तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 3 महीने के लॉकडाउन में सबसे ज्यादा इतना टाइम कभी हम अपने खुद के साथ नहीं रहे होंगे, कभी नहीं। और इतना टाइम हमें खुद के साथ रहने को मिला है, तो आपने उसको कितना पर्पसफुल यूज किया है। और नहीं किया है तो कोरोना अभी जाने वाला नहीं है, ये थोड़ा लंबा चलेगा, तो अभी भी टाइम है। खुद को ढूंढिए, खुद से, मुझ पे करम सरकार तेरा, अर्ज तुझे कर दे मुझे मुझसे ही रिहा। मेरे ही कुछ एप्रीहेंशंस है, उसमें से मुझे रिहा कर दो और मैं एक बिल्कुल खुले दिमाग और खुले दिल वाला स्टूडेंट बन जाऊं, तो मैं खुले दिमाग वाला टीचर भी बन जाऊंगा या बन जाऊंगी। तो बढ़ते हैं आगे। मुझे पता नहीं, मैं चैट यहाँ पे देख नहीं रहा हूं, तो मैं थोड़ा सा चैट बॉक्स ऑन कर देता हूं ताकि आपको कुछ अच्छा बुरा लगे आप मुझे बोल सकते हैं बीच में। तो रुक जाओ, बंद करो, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है मत बोलना, ऐसा कुछ कह सकते हैं आप। और अच्छा लगा हो तो आप बोलिएगा गुड, वेरी नाइस, अच्छा लगा, कंटिन्यू, ऐसा कुछ तो लिखिएगा बीच बीच में, तो मुझे पता चले, थोड़ा इंटरेक्टिव सा लगे। क्योंकि काफी लोग तो वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, तो कोई इश्यू नहीं है। आप सिर्फ कान सेन रहे तो कान से सुनिए। मैं कान सेन भी हूँ और आंख से भी बात कर रहा हूँ, तो बहुत बढ़िया। देखिए डॉली जी चली गई मीटिंग छोड़ के, क्योंकि उनको लगा ये काम का नहीं है, हो सकता है, और शायद उनका कुछ काम भी हो। यहाँ पे लास्ट एक पार्टिसिपेंट बचेगा, तब तक मेरी बात चलेगी। मैं नेक्स्ट आगे बात करता हूं कि जब हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो हमारे पास 64 क्रेयॉन्स होते हैं। एडवर्ड दी बोनो, लेटरल थिंकिंग के जो बादशाह माने जाते हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम स्कूल में जब एडमिशन लेते हैं तो हमारे पास 64 क्रेयॉन्स होते हैं, और जब हम अपनी पढ़ाई खत्म करके यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं तब हमारे पास सिर्फ एक पेन होता है। अंदर आए थे तब 64 कलरफुल क्रेयॉन्स थे, और जब पढ़ाई खत्म की तो हमारे पास सिर्फ एक पेन बचा है। मैं उन टीचर्स की बात करना चाहता हूं कि जो 64 क्रेयॉन्स के साथ एडमिशन लेते हैं और 64 क्रेयॉन प्लस 1 पेन लेके अपने एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकलते हैं। द लाइव टीचर, जीवंत शिक्षक। बढ़ते हैं आगे। बहुत सारे ट्रेनिंग्स करता हूँ, लाइफ रिलेटेड ट्रेनिंग्स करता हूँ, मोटिवेशनल लीडरशिप के ट्रेनिंग्स करता हूँ, एजुकेशन के ट्रेनिंग्स करता हूँ। हम कौन है? आप कहेंगे वी आर टीचर्स, वी आर इंसिडेंट प्रोवाइडर। देखिए करिकुलम वही रहता है, सिलेबस वही रहता है, 3-4 साल में एक आध बार थोड़ा सा चेंज होता है, और चेंज होता है तो भी हम उसको देख के कहते हैं यार कंफर्टेबली 3-4 साल में मैं ठीक से कर पा रहा था और ये चेंज हो गया। तो सिलेबस वही रहता है, आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। तो सामने वाले चेहरे जो है क्लासरूम में वो हर साल बदलते रहते हैं, और हम वही सिलेबस चलाते हैं। लेकिन वही सिलेबस हम किस तरह से चलाते हैं, किस तरह से रन करते हैं। तो छोटी मोटी घटनाएं घटती रहती है क्लासरूम में। मेरे क्लासरूम में घटना घटी थी, वो बाद में पूरा लाइफ में मॉड्यूल बन चुका है। उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और आपको एक सवाल भी पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे ट्रेनिंग्स करता हूँ, उसमें अभी कुछ टाइम पहले मैंने इनकम टैक्स ऑफिसर्स के साथ एक ट्रेनिंग किया था, और उस ट्रेनिंग में हमने 1.5 घंटे का एक सेशन किया था, एक एक्सरसाइज किया था, जिसमें सेशन का आगाज, उसकी शुरुआत में मैंने एक सवाल पूछा था कि व्हाट इज द ट्रेजर ऑफ योर लाइफ। व्हाट इज द ट्रेजर ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का खजाना क्या है। और आप लिखिए, आप बताइए आपके जीवन का खजाना क्या है। ये सवाल आपके लिए भी है होमवर्क में, आज रात को बैठ के आप कर सकते हैं कि व्हाट इज द ट्रेजर ऑफ माय लाइफ। मैं अपनी जिंदगी में जिसको कोहिनूर हीरा बोल सकता हूँ, बोल सकती हूँ, खजाना कौन सा है, कौन से हीरे मोती है मेरे जीवन। तो सबने अपने अपना आंसर देना शुरू किया। किसी ने कहा मेरी शिक्षा, मेरा फैमिली मेरा खजाना है। कोई बोले मेरे पास एक बहुत अच्छी गाड़ी है, वो कार मेरा खजाना है, मुझे लग रहा है इट्स अ ट्रेजर। कोई बोले किताबें है। एक महिला अधिकारी ने ऐसा कहा कि 176 letters are my treasure. 176 letters are my treasure. 176 लेटर मेरा खजाना है। तो इमीडिएट एक रिएक्शन आता है हम सबका। मैंने भी कहा लव लेटर्स, तो वो भी मुस्कुराई, वो बोली हाँ लव लेटर्स, लेकिन वो लव लेटर्स जो मेरे पापा ने मुझे लिखे हैं। तो मैंने कहा जरा डिटेल में बताइए और यहाँ डायस पे आके बताइए।
तो वो मैडम मेरे पास में आ गई डायस पे, और उन्होंने जो बात शेयर की वो मैं आपके साथ ब्रीफली शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं जब छोटी बच्ची थी तब रोज मेरे पापा मुझे जगाने आते थे मॉर्निंग में, स्कूल जाने का टाइम होता था तो पापा आते थे, और मैं बड़े नखरे करती थी, मुझे जाना नहीं होता था स्कूल, या मुझे अच्छा नहीं लगता था मॉर्निंग में जल्दी उठना, तो पापा ऐसे सर पे हाथ फिरा के मुझे जगाते थे कि बेटा गुड़िया उठो, गुड मॉर्निंग। और मैं नखरे करती थी 5-10 मिनट 15 मिनट, लेकिन बड़े प्यार से बगैर डांटे पापा मुझे जगाते थे, गले लगाते थे, और फिर वो नहाने और ये सब प्रोसेस शुरू होती थी और मैं स्कूल जाती। लेकिन हर संडे कहानी अलग होती थी। हर संडे मॉर्निंग में जब पापा मेरे कमरे में आते थे और मेरे सर पे जैसे ही हाथ रखते थे मेरी नींद खुलती थी, मैं तुरंत आंखें खोल देती थी। देखिए सोम से शनिवार जागने में देरी, लेकिन संडे में तुरंत जग जाती थी, और कोई रिएक्शन नहीं, इमीडिएट तकिए के नीचे हाथ डाल के मैं वहां से एक लिफाफा, एक कवर निकालती थी, क्योंकि मुझे पता होता था कि हर सैटरडे नाइट को मेरे सो जाने के बाद पापा एक लेटर लिख के मेरे तकिए के नीचे रख देते थे हर संडे। तो वो मैं निकाल लेती थी, और वो एनवेलप खोल के वो लेटर में पढ़ने लगती थी, और हर संडे मुझसे कोई ना कोई अच्छी बात लेटर के थ्रू करते थे। मैं लेटर पढ़ती रहती थी और वो मुस्कुरा के ऐसे बैठ के मेरे सामने देखा करते थे, और मैं लेटर पढ़ते पढ़ते कहीं बीच बीच में मैं उनके सामने जब देखती थी तो बड़े प्यार से मुस्कुराते थे, और लेटर खत्म होते ही मैं उनके गले लग जाती थी, वो भी मेरे गले लग जाते थे, मेरे सर पे हाथ रख के मुझे यहाँ पे एक अच्छा सा किस करके वो कहते थे गुड मॉर्निंग बिटिया, हैप्पी संडे, नहाने जाओ। और मैं उठ के बाथरूम में जाती थी, और इतना कहते कहते वो महिला ऑफिसर रोने लगी, वो इमोशंस से भर गई थी। उन्होंने कहा कि सर ऐसे 176 एनवेलप्स लेटर्स मेरे पास है, एंड दीज आर माय ट्रेजर। आज मेरे पास पापा नहीं है, ही पास रहे, पापा नहीं है, बट उनके लिखे हुए वो खत मेरे पास है, मेरे कपबोर्ड में मैंने बंच बना के रखा है। हर रोज मॉर्निंग में मैं उसमें से एक लेटर निकाल के पढ़ती हूँ, वो पढ़ने के बाद इसको इस बार इस साइड के बंच में रख देती हूँ और अपने काम पे चली जाती हूँ। साल में मुझे एक लेटर शायद 2 बार पढ़ना पड़ता है, लेकिन लाइफ में कभी निराशा नहीं होती, मुश्किल नहीं आती, गवर्नमेंट के कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आते, ऑफिस का काम आसानी से रहता है, क्योंकि मेरे पास ये ट्रेजर है। दीपक जी, जी दीपक जी, बहुत बहुत मजा आ रहा है आपको सुनने में, सभी पार्टिसिपेंट्स को भी आ रहा है। एक सवाल है अंजना जी का, कि जी जो आपने ये 65 क्रेयॉन्स और एक पेन वाला कॉन्सेप्ट बताया, इसको थोड़ा सा समझा दीजिए प्लीज। ठीक है, तो चलिए, मेरा पानी पीते ही एक सवाल आ गया बड़े अच्छे से। सवाल का जवाब देने से पहले मैं वो लेडी ऑफिसर की बात खत्म कर लूं कि पापा ने मुझे वो घटना, वो इंसिडेंट्स दे दिए हैं ये 176 लेटर के थ्रू, जिसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बन चुकी है। और हमारे पास हर एक स्टूडेंट के लिए पूरा एक साल रहता है, कहीं ना कहीं काफी बार प्लेग्राउंड पर, लेबोरेटरी में, क्लासरूम में, पिकनिक पे कोई इंसिडेंस घट जाता है, और अगर वहां अल्लाह का दरबार आ जाता है, आपको कनेक्ट द डॉट करना पड़ेगा कि अल्लाह का दरबार आ जाता है, तो आप सही रूट पे हो, ये समझ लीजिएगा। मैं आता हूं अंजना जी के सवाल पे। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ये एडवर्ड दी बोनो करके लिटरल थिंकिंग के बहुत बड़े उनका कॉन्सेप्ट ये है कि लिटरल थिंकिंग हम कैसे डेवलप करें। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी और जानना है तो आप 6 थिंकिंग हेड्स नाम का उनका बेस्ट सेलर बुक है, आप पढ़िएगा, आई वुड रिकमेंड दैट। उन्होंने ये कहा है कि जो एजुकेशन की जो सिस्टम है, वो सिस्टम है जो उस कुछ एरिया में ब्लॉक हो चुकी है, जिसमें उसने अपनी क्रिएटिविटी, अपनी कलरफुलनेस कम कर ली है किसी मैकेनिकल स्थितियों की वजह से। जैसे कि मैं उसको इंडिया के साथ रिलेट करके आपको बताऊं, तो इंडिया में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं हम टीचर्स, लेकिन घर में जाए माँ बाप बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? तो बहुत, ये एक रिसर्च भी हुई थी जिसमें ये आंसर मिला था कि पूछा गया कि आप बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, तो काफी सारे रिएक्शंस और रिसर्च में जो डेटा है उसमें ये बताया गया कि घर में ये बार बार सुनने को मिलता है कि ठीक से पढ़ाई करो, अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा कमाओगे, अच्छा पढ़ोगे तो अच्छी कैरियर बनेगी। अब ये बड़ा अजीब मामला है कि यहाँ पे हम लोग पढ़ाई को
कैरियर के साथ जोड़ के पढ़ रहे हैं। आइडियली ऐसा नहीं है, हम सब जानते हैं, हम टीचर्स तो बहुत बखूबी जानते हैं, लेकिन एक सिस्टम ऐसा बन चुका है कि आप ये पढ़ोगे तो आप आईआईटी करोगे, आईआईटी करोगे तो आपको ये पैकेज मिलेगा, आप ये करोगे तो आप मेडिकल में जाओगे, आप ये करोगे तो ये, तो वहां पे कंटिन्यूस एक अच्छी कैरियर बनाने का प्रेशर रहता है। तो वो जो 64 क्रेयॉन्स अब आप रिलेट करेंगे, तो उन्होंने ये कहा कि हमें इसलिए नहीं पढ़ना है कि हम अच्छा कमा पाए, अच्छा पढ़ोगे तो अच्छे बनोगे, अच्छे बनोगे तो अच्छी जिंदगी जियोगे, और अच्छी जिंदगी जियोगे तो अच्छा कमा ही लोगे, क्योंकि कमाना ही सब कुछ नहीं है, कमाना ही जिंदगी नहीं है, जिंदगी में कमाना जरूरी है, कमाना ही जिंदगी नहीं है, कमाना तो छोटा सा हिस्सा है। तो स्कूल में दाखिल होने से पहले बच्चे बहुत घर में भी दीवारों पे पिक्चर्स बनाते रहते हैं, कलरफुल ये करते रहते हैं, और फिर अचानक उनको हम लिखने में, पढ़ने में और उसमें एक सिस्टम में बिजी कर देते हैं। तो उन्होंने एक छोटा सा फ्रस्ट्रेटिव बात बताया था कि मैं जब एडमिशन लेता हूं तो मेरे पास कलरफुल मेरे खुद के विचार, मेरी खुद की सोच, मेरे खुद के आइडियाज, मेरा खुद का सब कुछ था, और इस सिस्टम में जाने के बाद बाहर निकला तो मेरे पास एक डिग्री और एक पेन, जो पेन मैं यहाँ लगा के रखता हूँ कि यस मैं डॉक्टरेट हूँ, मैं मास्टरेट हूँ, मास्टर्स किया है, जो भी है, लेकिन वो जो मेरी खुद की जो सोच थी, मैं किसी का कॉपी कैट तो नहीं बन रहा हूँ। तो वो हार्टफुल थिंकिंग पे लीड करने के लिए उन्होंने ये कोट कहा था, जो मैंने यहाँ पे भी शेयर किया, कि हम टीचर्स अगर विजिलेंट रहे तो हमारे स्टूडेंट्स 64 क्रेयॉन्स लेके जो एडमिट होते हैं, वो जब यहाँ से एग्जिट करे तब वो 64+1 65 चीजें लेके निकले, वो खुद का पर्सनालिटी भी लेके निकले, और जो समाज, जो शिक्षा व्यवस्था उसको दे रही है वो उसमें ऐड हो जाए, और पेन भी उसमें ऐड हो जाए, लेकिन 64 कलर्स वैसे के वैसे बरकरार रहे। आई होप अंजना जी मैं आपके सवाल का जवाब ठीक से दे पाया हूं। अगर नहीं हुआ तो आप जया जी से मेरा नंबर ले लीजिएगा, आज रात को हम फोन पे डिटेल में बात कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। जी जी थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। 164 लेटर्स आर माय ट्रेजर्स, जो मैंने कहा, तो मैं सवाल आपसे भी पूछ सकता हूं कि आपके जिंदगी का, आपके जीवन का खजाना क्या है, और सबके पास अपने अपने आंसर्स होंगे, और मैं अपने खजाने की ओर चल पड़ता हूं। मेरा खजाना है दीक्षित साहब। दीक्षित साहब मतलब जब खजाने की बात करेंगे, अनुभव की बात करेंगे, तो आपको आपके काफी सारे स्टूडेंट्स, अभी जो मैं आपको कहूंगा उसमें आपको आपके कई सारे स्टूडेंट्स नजर आएंगे। तो मैं दीपक तेरैया, बहुत ही शरारती लड़का, अच्छे से पढ़ने वाला, फर्स्ट से 7th स्टैंडर्ड तक स्कूल फर्स्ट आने वाला, साइंस फेयर में हिस्सा लेने वाला, ओबीडियंट डिसिप्लिन्ड बॉय, क्यूट बॉय, शिक्षकों का प्यारा विद्यार्थी। अगर टीचर क्लास में आते हैं, डस्टर भूल जाते हैं, तो वो मुझे ही भेजते थे, जाओ बेटा लेके आओ, क्योंकि मुझे पता रहता था कि टीचर डस्टर कहाँ पे रखते हैं, ये ब्ला ब्ला। बहुत ही प्यारा लड़का। 8वीं कक्षा में, हाई स्कूल में आने के बाद, एडोलेसेंट एज में आने के बाद थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हुआ। धीरे धीरे पढ़ाई से कुछ मन आगे पीछे होने लगा, कंसंट्रेशन इधर उधर होने लगा, बहुत मस्ती होने लगी क्लास में। एक दो बार टीचर ने बहुत डांट दिया, पनिशमेंट दे दिया, तो उनकी क्लास बंक करना भी शुरू कर दिया। सब्जेक्ट बुरे नहीं होते हैं, मुझे कभी मैथ्स नहीं आई, लेकिन मुझे ध्यान से मैं देखने जाऊं तो मुझे पता चला कि मैथ्स सिखाने वाले टीचर का जो बिहेवियर था वो भी मैं रिलेट कर पाता हूँ शायद थोड़ा सा। अभी आपको अंदर मत जाइएगा, मैं पूरी घटना आपको बताऊंगा और उससे बहुत गहराई वाला सवाल भी पूछूंगा। ये जीवंत शाला है। तो पढ़ाई में ठीक है, मस्ती से सेकंड लास्ट बेंच पे, मतलब सेकंड से पहले वाली बेंच पे मैं बैठता था पीछे, ताकि आसानी रहे, और बिल्कुल बेंच के पास में खिड़की थी, लकड़े के दरवाजे वाली ओपन खिड़की, और वो खिड़की से डायरेक्ट आप लॉबी में एंटर कर सकते हैं स्कूल के। तो मैं बड़ा टीचर्स को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता था। मुझे पता नहीं, गुजरात में एक नशाबंदी का पोस्टर लगता था सालों पहले, क्योंकि गुजरात इज ए ड्राई स्टेट, तो ऐसा पोस्टर लगता था। वो पोस्टर में ये था कि शराबी है, उसको एक बोतल पी रही है, मतलब एक बोतल है, बोतल के 2 हाथ 2 पैर है, और वो एक इंसान को निगल रही है, और नीचे लिखा हुआ होता है कि शराबी शराब को क्या पिएगा, शराब ही शराबी को पी जाती है। अब आप बोलेंगे ये मैंने कौन सा एग्जाम्पल कहाँ फिट कर रहा हूँ, आप रिलेट कीजिएगा। टीचर स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाएगा, स्टूडेंट ही टीचर्स को इतना पढ़ा देते हैं कि टीचर्स खुद उसमें
शराबी को पी जाती है। तो मैं टीचर्स को बहुत ऑब्जर्व करता था, तो मुझे पता था, आप अपने को रिलेट कीजिएगा। टीचर्स की आदत होती है कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं कि जो विदाउट आई कांटेक्ट पढ़ाते हैं। काफी सारे टीचर्स किताब हाथ में लेके पढ़ते हुए पढ़ाते हैं। कुछ टीचर्स होते हैं वो उनके फेवरेट 5 स्टूडेंट्स की ओर, उनको लगता है ये स्टार बैच वाले हैं, स्टार बैच। ये एजुकेशन सिस्टम पे बहुत बड़ा कलंक जो लगा है मेरे हिसाब से, आप डिसएग्री हो सकते हैं, विच इज स्टार बैच, डिस्क्रिमिनेटिंग स्टूडेंट्स। हाँ, 10 क्लासरूम में से एक स्टार बैच होता है और स्टार बैच वाले स्टूडेंट्स धीरे धीरे ऐसे चलने लगते हैं कि वी आर स्टार्स, और बाकी के लोग समझने लगते हैं कि हम तो धूमकेतु हो गए। तो ये जो इक्वालिटी और ये बहुत सारे मुद्दे हैं, आज मैं सारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं तो सिर्फ सवाल जवाब तो सभी के पास होते हैं, सवाल ठीक से पूछे नहीं जाते, तो मैं तो कुछ क्वेश्चंस छोड़ के इस सेशन को बंद कर दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ अपने फेवरेट स्टूडेंट्स के सामने देखते ही पढ़ाते हैं, 5 स्टूडेंट के सामने ही देख के पढ़ाते हैं, बाकी के 45 जो करना है कर सकते हैं, उनके सामने उनका ध्यान कम ही पड़ता है। तो ऐसे ही मेरे एक टीचर पढ़ा रहे थे अपने प्यारे 3 स्टूडेंट के सामने देखते हुए, जैसे वही 3 ही क्लास में बैठे, हम तो थे ही नहीं कोई, तो बोर होने लगा मैं, क्योंकि टीचर की नजरें नहीं मिलती। हाँ, एक चीज मैं सीखा हूँ एजुकेशन के प्रोफेशन से, कि एजुकेशन का प्रोफेशन क्या है, या मैं अभी ट्रेनर हूं तो ट्रेनिंग का प्रोफेशन क्या है। मैं काफी बार ये कहता हूं कि प्रोफेशन और इश्क में फर्क है। प्रोफेशन और इश्क में फर्क है। प्रोफेशन हमें ये सिखाता है कि इससे मुझे क्या मिलेगा। अगर जो भी काम में आप ये सोच के एंटर करते हो कि कितना सैलरी मिलेगा, वैकेशन मिलेगा या नहीं, ओवर टाइम करना पड़ेगा, प्रॉक्सी लेना पड़ेगा, कितना काम रहेगा, कुछ और काम देंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव काम मिलेगा या नहीं, और ये सब सोचने के बाद इंटरव्यू में जब पूछा जाता है कि आप इस स्कूल में टीचर क्यों बनना चाहते हैं, तब हम ये कहते हैं कि मुझे पहले से ही एजुकेशन में बहुत ही इंटरेस्ट है, मैं पहले से ही सर्विस में आना चाहती या चाहता हूँ। तो अंदर तो बहुत सारे कैलकुलेशंस है, इससे मुझे क्या मिलेगा। और इश्क वाले लोग कैसे बात करते हैं, जो किसी के इश्क में है वो फोन पे बताता है जान दे दूं, लुट जाऊं, मर जाऊं। तो यहाँ पे जान देने को जी चाहता है। तो ये सवाल जो है वो रिलेट वहां पे होता है कि 5 लेक्चर्स एक साथ लेने के बाद अगर मैं घर पे जाके किसी से बात करने को रेडी नहीं हूं, इतना थक चुका हूं, या मुझे कोई बुलाए नहीं ऐसा मुझे लग रहा है, तो मैं सिर्फ टीचर के प्रोफेशन में हूं। लेकिन 5 घंटा एकदम ऊर्जा से, एंथुजियाज्म से हमने लेक्चर्स ले लिए, पीरियड्स ले लिए, सारे सेशंस खत्म करके हम घर जाते हैं और कोई स्टूडेंट का फोन आता है टेलीफोनिक काउंसलिंग पे, और 1.5 घंटा हम उसी एनर्जी से बात करेंगे, तो मैं इश्क में हूं, क्योंकि मैं लुट जाना चाहता हूं, मैं देना चाहता हूं, मुझे अपना सब दे देना है। मुझे पता नहीं इस 1 घंटे के सेशन में मुझे इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं कि मैं सब रख दूं, ये सारे टीचर्स के सामने सारी बातें रख दूं, पूरी जिंदगी निकाल के दे दूं, शायद उनका कुछ काम में आ जाए। तो मैं टीचर्स को देखता था, टीचर्स पढ़ा रहे थे, मैं बोर होने लगा, तो मैं धीरे से उठ के, मैं ऐसा काफी बार कर चुका था, खिड़की में बैठ गया। अब मेरा पड़ोसी स्टूडेंट जो मेरा दोस्त था वो टेंशन में आने लगा कि अगर सर ने देख लिया तो मार पड़ेगी, तो बोले चुप वापिस जाओ। मैं खिड़की से बाहर कूद गया और मैं लॉबी में घूमने लगा, स्कूल में थोड़ा सा एक राउंड लगाया, वॉशरूम चला गया, लगी नहीं थी फिर भी चला गया, और पानी पिया। 10-15 मिनट के बाद घूम के वापस आया, खिड़की से अंदर देखा तो उस जनाब तो फिर से वही 3 स्टूडेंट्स के साथ दा 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 ब्ला ब्ला चल रहा था। आराम से मैं खिड़की में अंदर आया, फिर आके अपनी जगह पे बैठ गया। तो ये था मैं, शैतान। जो टीचर जैसे है उसकी क्लास में वैसे बैठो। देखिए, आप डिसिप्लिन का पूरा कॉन्सेप्ट हमें अलग तरीके से फिर से सोचने की जरूरत है, क्योंकि एक टीचर क्लास में आता है, वो कहता है ऐसा बैठो, बूढ़े लोग ऐसे बैठते हैं, सीधा बैठो, तो बस सब ऐसे हो जाते। कोई लेडी टीचर आई, बोले नहीं नहीं बेटा रिलैक्स, आराम से, लेकिन ध्यान यहाँ होना चाहिए, तो सब ऐसे बैठ जाते हैं, आराम से पैर लंबे करो नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरे टीचर आते हैं, हाथ पीछे रख के चलो, यही डिसिप्लिन है। 15 टीचर स्कूल में है, लेकिन 15 टीचर्स का सबका डिसिप्लिन का डेफिनेशन अलग अलग है। तो स्टूडेंट्स धीरे धीरे हिपोक्रेसी, दंभ सीख लेते हैं कि ये टीचर ऐसा चाहते हैं तो उनके सामने ऐसे पेश हो, ये टीचर ऐसा चाहते हैं तो उनके सामने ऐसे पेश हो, ये टीचर ऐसे चाहते हैं उनके सामने ऐसे बिहेव करो। इसीलिए हमारे कई चेहरे बन जाते हैं और मुखौटे लगा के हम अलग अलग, ऑफिस में हम अलग है, घर पे अलग है, दोस्तों के साथ अलग है। मुझे जब से समझ में आया, मेरी कोशिश ये है मैं सब जगह पे एक ही रहूं।
तभी मैं अच्छा टीचर बन पाऊंगा या बन पाऊंगी। तो ये तो बचपन से सीखता आया हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी लर्निंग आने वाली है। तो ऐसे ही क्लास में बैठा था, हमारे दीक्षित साहब क्लास में पढ़ा रहे थे। उससे पहले एक और इंसिडेंस की, जो सर पढ़ा रहे थे तो मैं बोर हो गया, और उस दिन सर ने खिड़की बंद कर दी थी कि तुम बाहर देखते रहते हो, इधर देखो। तो मैं बोर हो गया, तो उनके सामने यूं यूं चेहरा हिला रहा था कि जैसे मैं सुन रहा हूँ, लेकिन बोर हो गया। तो सब कुछ वो बोर्ड पे लिख रहे थे, तो मैंने नोट में, अपने नोटबुक में लास्ट पेज खोला, लास्ट पेज पे सर की कार्टून बनाना शुरू कर दिया। अच्छा कार्टून बना लेता था मैं, कार्टून बनाना शुरू कर दिया। 2 मिनट में मैंने सर का कार्टून बना लिया। बड़ी आंखें, लंबी मूंछ, यूं खड़े थे, तो कार्टून बना लिया। लेकिन सर भी सर थे, उनका ऑब्जर्वेशन भी पावरफुल था। उन्होंने देख लिया कि वहां कुछ हो रहा है, बोले, ए दीपक क्या कर रहा है? मैंने नोट बंद कर दिया, बोले कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। बोले नहीं नहीं, तुम कुछ कर रहे थे। मैंने बोला नहीं सर, नहीं कुछ कर रहे थे, लाओ इधर आओ। मैंने बोला मैं कुछ नहीं कर रहा था सर। बोले इधर आओ। मैंने बोला सर मेरी गलती क्या? शायद क्लासरूम में बचपन से ही हम सीख जाते हैं कि जब भी हमको बोला जाता है इधर आओ, स्टेज पे बुला के, तो शायद कुछ होने वाला है। लेकिन एक और रूल भी है, मैं चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट हूं, तो एक बात मैं बता दूं, बच्चों को बचपन से ये सिखाया जाता है, जैसा बड़े कहते हैं वैसा करो। तो टीचर ने कहा बोला ना इधर आओ, तो वो रूल तो मुझ पे भी लागू था कि जैसा बड़े कहते हैं वैसा करो। तो मैं उठ के चला गया। तो बोले नोटबुक लेके आओ। मैंने बोला बड़ा फंसा। अब नोटबुक मैंने येलो कवर वाले बुक में कार्टून बनाया था, लेकिन मैंने ब्लू वाला बुक उठाया और चलने लगा। वो बोले ब्लू वाला नहीं, येलो वाला लेके आओ, मैं देख रहा था। अब बड़ा फंसा। येलो वाला बुक लेके जैसे ही मैं वहां गया, उन्होंने बोला नोट दिखाओ। तो मैंने फर्स्ट पेज खोला। फर्स्ट पेज लिखा था दीपक हरिप्रसाद तेरैया, कक्षा 9 बी, सरस्वती माताए नमः, एक कमल का चित्र रखा था। बोले लास्ट पेज खोलो। देखो फर्स्ट पेज तो बड़ा अच्छा होता है नोटबुक का, सजा सजाया, जैसे कि हमारे घर का ड्राइंग रूम सजा सजाया। लेकिन बोले लास्ट पेज खोलो। अब मैंने जैसे ही लास्ट पेज पे क्या होता है, मैं सारे टीचर्स को रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप फिजिकली अपने क्लास में जाए और आप स्टूडेंट्स का जब होमवर्क चेक करें नोटबुक में, तो नोटबुक में होमवर्क चेक करते करते उन्होंने जो मार्जिन में कुछ ड्राइंग्स बनाए हैं या लास्ट पेज पे क्या लिखा है, वहां भी थोड़ा सा नजर डाले। बच्चा शायद आपको वहां मिलेगा। अगर आप सबके पास भी डायरी होंगी, आप भी अपना डेली नोट्स और सब कुछ लिखते होंगे, डेली रूटीन लिखते होंगे, आपकी डायरी के लास्ट पेज को मैं फोटो कॉपी करा के ले लूं अभी, और तो मेरा अच्छा रिसर्च पेपर हो जाएगा। आप में से काफी लोग तो लास्ट पेज मुझे देंगे भी नहीं, क्योंकि उसमें काफी सारे पर्सनल टाइप के इंफॉर्मेशन होंगे। 20 साल पुराना सूखा हुआ गुलाब भी मिलता है कहीं डायरी में से। तो पॉइंट इज दैट कि लास्ट पेज पे मेरी दुनिया थी, मैंने कार्टून बनाया था। सर ने बोला दिखाओ। देखा, सर खुद को पहचान गए। आपको मेरे शब्दों को 2 बार सुनना पड़ेगा। सर खुद को पहचान गए, कार्टूनिस्ट को नहीं पहचान पाए। खुद को पहचान गए, कार्टूनिस्ट को नहीं पहचान पाए। नालायक, मेरी कार्टून बनाता है। 2 थप्पड़ लगा दिए, पेज फाड़ दिया। हूबहू उनकी कार्टून बनी थी, देखते ही पता चल गया कि ये मेरा ही कार्टून है। वो अच्छे कार्टूनिस्ट को नहीं पहचान पाए, शायद तरीके सबके अलग, मेरा भी गलत था तरीका। तो 2 थप्पड़ पड़ गए, एंड द सेम डे माई कार्टूनिस्ट डाइड। उसके बाद मैं कभी कार्टून नहीं बना पाया। काफी बार पेंसिल हाथ में उठाई, कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। थैंक्स टू आईओएफसी की मैंने वो फिर उनको माफ भी कर दिया अपने अंदर से, तो धीरे धीरे कुछ फिर से कोशिश करने की इच्छा रखता हूँ। ये एक इंसिडेंट हुआ। और दूसरा, दीक्षित साहब बायोलॉजी के टीचर क्लास में आते थे, 7 फुट की हाइट, चश्मे वाले, 2 बायोलॉजी लेके आते थे, हाथ में एक हाथ में डस्टर, 10 चॉपस्टिक। 10 चॉपस्टिक्स, इतना सारा लिखते थे? नहीं, लिखते सिर्फ 1-2 से थे, बाकी का खड़े खड़े तोड़ देते थे। और जो सो रहा है, वो जो उबासी ले रहा है, उसको मारते थे ऐसे जाग जाग करके। तो बड़े ही अलर्ट। और दीक्षित साहब चश्मा पहनते थे, चश्मे के अंदर से सब देखे तो सब सही सलामत, लेकिन चश्मे के बाहर से देखा तो आपको समझना है कि शिव जी का तीसरा नेत्र खुलेगा। ये हमने आइडेंटिफाई करके रखा था। और उनके साथ आर्ग्यू बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उनका नाम रखा था स्टूडेंट्स ने दीक्षित डबल। 2 बार ही आप चर्चा कर सकते हो, तीसरी बार नहीं कर सकते। माय डियर फ्रेंड्स, हम सबके नाम भी स्कूल में पढ़े होंगे, कोई ना कोई लेवल। दीपक दड़ियल, मोटे पेट वाले पुष्पा, कड़ियल कोकिला, जो भी नाम जो भी है, नाम रिलेट मत कीजिएगा, लेकिन लेबल रहते हैं और उससे गुस्सा नहीं होना है।
ये अच्छा रहना चाहिए कि चलिए हमारा भी कोई नाम है, हम भी अपने प्रोफेसर टीचर्स के नाम रखते थे। तो दीक्षित डबल अच्छा पढ़ाते थे। एक दिन क्लास में वो टाइम पे नहीं आ पाए, थोड़ा लेट आए, कुछ काम हुआ होगा। तो क्लास में हम सब मस्ती कर रहे थे, सबसे फ्रीडम वाला टाइम था। मेरा बेटा, हम लोग पेरेंटिंग के भी सेशंस करते हैं काफी बार, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में मेरा बेटा जब पढ़ता था तो मैंने उसको पूछा कि बेटा आपके स्कूल में सबसे बेहतर, सबसे क्वालिटी टाइम कौन सा लगता है जब आपको बहुत मजा आता है? तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ते हुए बेटे ने मुझे जवाब दिया था कि एक टीचर जाते हैं और दूसरे आते हैं, उसके बीच वाला। तो मैं टीचर था, मुझे तो बड़ा दुख हुआ सुन के। मैंने बोला ऐसा क्यों भाई? तो बोले तब जो करना हो कर सकते हैं, तब जो करना हो कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि टीचर के प्रेजेंस में स्टूडेंट अपना फ्रीडम महसूस नहीं कर सकते। तो वो उस दिन मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि हम क्या करते हैं क्लासरूम में कि कोई कोई सेंस ऑफ फ्रीडम, सेंस ऑफ पीस स्टूडेंट्स के साथ नहीं रह पाती। अगर रहती है तो आप बहुत बढ़िया तरीके से अंदर जाके हार्टफुली कर सकते हैं, लेकिन काफी बार डिसिप्लिन का डंडा इतना बड़ा रहता है। तो दीक्षित साहब आए नहीं, तो दोस्तों ने मेरी पतंग में हवा भरी, बोले दीपक जाना, थोड़ा मस्ती करना। तो मैं स्टेज पे चढ़ गया और मैं मिमिक्री करने लगा दीक्षित साहब का। जिस तरह से वो खड़े होते थे, चॉक स्टिक के टुकड़े करते थे, लोगों को मारते थे, तो मैं भी मारने लगा, यूं करने लगा और ऐसे बोलने लगा। क्लास में सब बहुत मस्ती का माहौल हो गया, सब हंसने लगे, ठहाके लगाने लगे। अचानक से सारे दोस्त हंसना बंद कर दिए। 2-3 मिनट मिमिक्री चला, फिर सब हंसना बंद कर दिए। तो मैं सोचा ये बंद क्यों हो गए, तो मैं और जोर से मिमिक्री करने लगा, लेकिन वो सब तो ऐसे बैठ गए थे। तो धीरे से मैंने देखा तो सब दरवाजे की ओर देख रहे थे, तो मैंने भी ऐसे दरवाजे की तरफ देखा, तो वहां पे दीक्षित साहब खड़े थे, हाथ में 2 बायोलॉजी की बुक्स, चॉकस्टिक, और चश्मे के बाहर से देख रहे थे। सारी चीजें समझ में आ गई, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रही। दौड़ के मैं सीधा अपने बेंच पे बैठ गया। क्लास में उस दिन शोले से भी बड़ा सन्नाटा था, किसी ने कहा भी नहीं इतना सन्नाटा क्यों है मेरे भाई। बहुत सन्नाटा था, क्योंकि सबको पता था कि अब इसका क्या होने वाला है, तेरा क्या होगा कालिया। सर क्लास में आए, उन्होंने बुक्स और डस्टर वस्टर सब रखा और थोड़ा फ्रंट में आए और ऐसे शर्ट के वो इसे गिरेबान को चढ़ाते हुए बोले, तेरैया, दीपक। और मैं शुरू हो गया, सॉरी सर गलती हो गई सर, प्लीज सर कभी नहीं करूंगा सर, गलती हो गया, आई एम सॉरी सर, कभी नहीं करूंगा। तेरैया, जी सर। क्योंकि मुझे पता था 2 बार से आगे बात नहीं कर सकते। जी सर। बोले इधर आओ। सर सॉरी सर, इधर आओ। फिर जाना पड़ा। जैसे ही मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे यहां से गिरेबान से पकड़ के दबोच के उठाया। मतलब मैं ऊपर हवा में था, मेरे पैर लटक रहे थे, उनकी 7 फीट की हाइट और मेरा कितना। तो वो हवा में बोले क्या कर रहा था? सॉरी सर गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए प्लीज, कभी नहीं करूँ। नहीं नहीं, बोलो बोलो, जो पूछे उसका जवाब दो, क्या कर रहा था तुम? तो फिर हिम्मत जुटा के मैंने आंखें बंद करके बोल दिया कि सर मैं आपका मिमिक्री कर रहा था सर, और आंख बंद कर दी। मैंने सोचा अब गाल पे थप्पड़े पड़ेगी, तो मैंने आंख बंद कर दी। मैंने सर आपका नकल, आपका मिमिक्री कर रहा था सर। और खट से उन्होंने मुझे छोड़ दिया, मैं पट से नीचे गिरा और चट से आंखें खोली। तो बोले एक बार और करो। मैंने बोला नहीं नहीं सर, मैं करो नहीं तो पिटोगे। उन्होंने जी सर। और वो पास में कुर्सी पे बैठ गए और उन्हीं के पास खड़े होके उनके प्रेजेंस में मैंने उनका मिमिक्री शुरू किया। पहले थोड़ा सा डरे डरे से, लेकिन ये जनाब तो जोर जोर से ताली बजा रहे थे, जोर जोर से अप्रिशिएट कर रहे थे। तो फिर तो कॉन्फिडेंस और बढ़ी, तो और अच्छे से करने लगा। पूरा क्लास हंसने लगा। 10 मिनट तक सब ने बहुत मजे लिए, सब चिल्लाए, सब हंसे, बहुत मजा किया। हाँ, अब ऑब्जर्वेशन ऐड करूं तो मुझे पता है कि हंसने का जो फ्लो था वो बिल्कुल वो शोले टाइप का था। पहले अकेला गब्बर हंसता है, तीनों बच गए साले। फिर सांबा क्लास का मॉनिटर हंसता है, फिर सारे डाकू हंसते हैं और लास्ट में कालिया हंसता है। लेकिन बहुत हंसे, सबने मजा लिया। सर खड़े हो गए, जेब में से 5 रुपए का नोट निकाला, मेरे हाथ में दे दिया, मेरी पीठ 2 बार थपथपाई, बोले क्या मस्ती से तू मिमिक्री करता है, बहुत मजा कराया, चलो बैठो, शाबाश करके ऐसे मुझे बोला कि जाओ बैठो। और जैसे ही मैं जा रहा था तब वो पीछे से बोले बड़ा मजा कराया इस लड़के ने, चलो सब जीव विज्ञान खोलो। उस सेंटेंस को मैं जब आज याद करता हूं तो मुझे पता चलता है कि जीव विज्ञान तो मैं कितना पढ़ा मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे अंदर कौन सा विज्ञान खोल दिया वो मुझे आज समझ में आ रहा है। वो 5 रुपए का नोट लेके मैं ऐसे चल के
शान से चल के, प्राउड चल के, दोस्तों से नजरें मिलाते हुए, देखा देखा करके अपनी बेंच पे गया। 5 रुपए का नोट आज भी मैंने संभाल के रखा है, वो पद्मश्री अवार्ड। वो मुझे आज भी इंस्पायर करता है, 5 रुपया। इतना ही नहीं, 15 दिन बाद मुझे प्यून बुलाने आया प्रिंसिपल के रूम में। प्रिंसिपल के रूम में दीक्षित साहब बैठे थे, वहां मुझे बोला गया कि एनुअल फंक्शन में 10 मिनट मिलेंगे, ठीक से तैयारी करो। और एनुअल फंक्शन में 10 मिनट मैंने प्यून से लेकर ट्रस्टी तक सबका मिमिक्री किया। एक छोटा सा मेडल मुझे मिला, आज भी मैंने संभाल के रखा है। और एट द एज ऑफ 46 मेरे ट्रेनिंग सेशंस हमेशा मैं लाइव करने की कोशिश करता हूं। उसमें वो सारा मिमिक्री थिएट्रिक एलिमेंट अपने आप जुड़ जाता है, आई कांटेक्ट अपने आप बन जाता है। आज भी मेरे अंदर वो मिमिक्री आर्टिस्ट भी जिंदा है, एकेडमिक पर्सन के साथ। और कार्टूनिस्ट मर गया 2 थप्पड़ के साथ। ये लंबी दास्तान मैंने इसलिए सुनाई। एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने कितने कत्ल किए? काफी लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत भी आएगी कि ये क्या सवाल है, लेकिन जाने अनजाने में नोटबुक में बड़ा क्रॉस लगाते वक्त, क्लास में सबके बीच में किसी बच्चे को डिसिप्लिन के नाम से इंसल्ट करते वक्त, उसके मिस्चीवियस बिहेवियर के अगेंस्ट में उसके पास 500, 200, 1000 रुपए का फाइन वसूल करते वक्त जो भी होता है, वो इंसिडेंट्स कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं कि सजा जज सुनाते हैं, फाइन पुलिस वसूल करती है। वी ऑल आर टीचर्स, we should have to leave the punitive approach in our classroom। पूरा प्यूनिटिव अप्रोच हमारे मन से निकाल देना चाहिए और गाइडेंस अप्रोच पे फोकस करना चाहिए। अगर हम कर पाए, अब ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, ऐसा भी मैं कहूंगा, और मैं बहुत जो भी पढ़ा हूं, जितने एजुकेशनिस्ट का किताब मैंने पढ़ा है, विनोबा जी से लेके गांधी जी से लेके सब ने प्यूनिटिव अप्रोच की बात किसी ने नहीं की। किसी ने नहीं कहा कि जाओ गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। लेकिन अगर आपने, कई स्टूडेंट्स को आज तक ये कहा है कि अंदर अंदर बात कर रहे थे, गेट आउट फ्रॉम माय क्लास, अगर पढ़ना नहीं चाहते हो कॉलेज से बाहर निकल जाओ। मेरे कॉलेज में डिसिप्लिन कमेटी में एक साहब थे, वो डंडा लेके जाते थे मैदान में। अब स्टूडेंट्स बाहर खड़े हैं, क्लास में नहीं गए हैं, तो वो बोलते हैं पढ़ना है तो अंदर जाओ, वरना वो गेट है बाहर जाओ। तो मीटिंग में मेरा झगड़ा हो गया उनके साथ। मैंने बोला हम अध्यापक हैं, हम जाने के लिए नहीं कह सकते, हमको उनको लाना है, क्लासरूम में ले जाना है, और डंडा लेके नहीं जा सकते। तो वो डंडे वाली दुनिया थी एक, लेकिन वो सारे टीचर्स अगर आप याद करें तो वो प्यार भी बहुत करते थे। और अभी प्यार करने वाले टीचर्स का स्कैरसिटी है, और डंडा चलाने वाले, डिसिप्लिन का डंडा चलाने वाले बहुत बढ़ चुके हैं। इवन दो स्कूल मैनेजमेंट वाले भी इतना इंसिस्ट करते हैं, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि मैं तो ये सीधा रिलेट करके बताता हूं आपको कि अगर आज तक मैं ये कह रहा हूं कि गेट आउट फ्रॉम माय क्लास, और स्टूडेंट्स बाहर बैठते हैं, तो स्टूडेंट्स ये कहते हैं अच्छा था, अंदर अकेले अकेले बात करनी पड़ती थी एक दूसरे से, अब दोनों को बाहर भेज दिया, आराम से बात करेंगे। लेकिन अभी तक स्टूडेंट्स को उनके राइट्स पता नहीं है। राइट टू एजुकेशन ध्यान से पढ़े तो उसमें लिखा है कक्षा पे, क्लास पे, बेंच पे, चौक पे, डस्टर पे, टीचर पे, त्योहार पे मेरा भी तो अधिकार है। तो जिस दिन टीचर्स, स्टूडेंट्स समझ जाएंगे कि मेरा अधिकार है, तो शायद कभी ये भी हो सकता है कि सारे स्टूडेंट्स खड़े होकर टीचर्स को कह दे कि यू गेट आउट फ्रॉम माय क्लास। क्षमा कीजिएगा अगर मैंने बहुत गहरी बात कह दी हो तो, लेकिन अगर हम राइट बेस्ड सोचने की बात करेंगे, बालकों के अधिकारों से हम सोचने की बात करें, इसी बात पे 2 लोग लेफ्ट हो गए, तो हमें समझना है। तो दीक्षित साहब यहां तक नहीं, मेरे भगवान क्यों है वो, मेरे पिताजी मेरे पढ़ने की चिंता करते करते ही पास्ड अवे, और दीक्षित साहब ने मुझे घर पे बुलाया 12वीं कक्षा में। तब मैं 3 बार फेल हो चुका था, मैथ्स में 0, फिजिक्स में 2, केमिस्ट्री में 8, ऐसे मार्क्स थे मेरे। स्कूल से भाग के मैं पूरा दिन लाइब्रेरी में बैठता था, पूरा दिन किताब पढ़ता रहता था, कभी कभी सिनेमा चला जाता था। आज सिनेमा मेरी दूसरी माँ है। स्कूल से जितना सीखा उतना माँ से सीखा, उतना सिनेमा से भी सीखा। घर में 4000 किताबों की लाइब्रेरी है, लेकिन स्कूल तो बाहर भी चली थी, स्कूल से बाहर भी स्कूल थी। तो दीक्षित साहब ने, मेरे पिताजी जो चले गए, ही पास्ड अवे, उसके बाद मुझे कुछ दिन बाद दीक्षित साहब ने मुझे घर पे बुलाया, मेरे सर पे हाथ रख के मुझे पूछा
कि तेरे पापा तेरी पढ़ाई की चिंता करते करते इस दुनिया से चले गए, अब क्या सोचा है, कुछ बनना है, कुछ करना है आगे। 3 मिनट, 3 सवाल और 10 मिनट के काउंसलिंग में त्रिभुवन घूम गया। त्रिभुवन घूम गया, सारी चीजें समझ में आ गई, वेयर डू आई स्टैंड। सर के पांव छू के वहीं से निकला, चप्पल भी उनके घर छोड़ दिया, नंगे पैर घर चला गया। और जो किताबें कभी अच्छी नहीं लगती थी उस टाइम पे पढ़ाई की, उस किताबों को गले से लगाया, किताबों को चूमा, किताबों को सर पे लेके घर में घुमा, और उस दिन रात को 2 बजे तक मैंने फिजिक्स पढ़ा। 2 बजे तक पढ़ा, दिल से पढ़ा तो पढ़ना शुरू हो गया। 57% से 12वीं कक्षा पास की। फिर पूछा अपने आप को कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, तो मैंने साइंस की जगह बिहेवियरल साइंस चुना, जो कि मेरा डोमेन था, और कॉलेज में एडमिशन लिया। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के दोनों दोनों साल, 5 साल कॉलेज और यूनिवर्सिटी फर्स्ट रहा मैं, दोनों के गोल्ड मेडल सिक्योर किए। अब पढ़ाई रुक नहीं रही है। तो कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, कुछ टीचर्स ऐसे आ जाते हैं जो पूरी जिंदगी का बहुत बड़ा मैसेज हमें दे देते हैं। तो आप वो ट्रेजर वाले टीचर है या प्रेशर वाले टीचर है, अपने आप से सवाल पूछिएगा कि क्लास में अगर आप धमकियां बिखेरते फिरते हैं कि अगर कल होमवर्क नहीं लाए तो देखना, मेरी बात नहीं मानी तो देखना, तो काम खुद पे ही करना बाकी है। लेकिन आप क्लास में आते हो, आप जस्ट क्लास में एंटर होते हो, बहुत सारी आवाजें चल रही है क्लास में, मस्ती हो रही है, आवाजें हो रही है, चिल्ला चिल्ली हो रही है, लेकिन जैसे ही क्लास में आप एंट्री करते हो और स्टूडेंट अगर ऐसे हो जाए, ऐसे आपको देखना होगा मेरा चेहरा ऐसे, मतलब मिसमराइज्ड, वो देखेंगे अरे मैडम सर आ गई। अब एक एक मोमेंट कीमती है, वो क्या करेंगे क्या करेंगे, ये बहुत काम की चीज है, इस क्षण को छोड़ना नहीं है, ये 55 मिनट को या 35 मिनट को छोड़ना नहीं है। इतना इन्वॉल्वमेंट उनका आ जाए आपकी बात को सुनने के लिए, आपकी, तो जब वो देखेगा वो सब सीखेगा। आप उस मोमेंट पे पहुंच चुके हो, तब आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट में नहीं, आप डायरेक्ट कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम करने वाले टीचर बन चुके हो। क्योंकि तब आप जो बोलोगे और जो करोगे दोनों साथ में जाएगा। और इसलिए मैंने एक टीचर्स के लिए मॉड्यूल बनाया है जिसका नाम मैंने रखा है कंटेंट एंड कैरेक्टर ट्रैवल्स टुगेदर। कंटेंट एंड कैरेक्टर ट्रैवल्स टुगेदर। तो मेरा कंटेंट बहुत पावरफुल हो सकता है, लेकिन मेरा कैरेक्टर भी पैरेलल वो चलता है साथ में। अगर वो दोनों मैच नहीं कर पाए तो स्टूडेंट्स वो नहीं पकड़ पाएंगे। तो थोड़ा सा 2-4 मुद्दा मुझे और कह के मैं सेशन को समाप्त करूंगा। एक बहुत बड़ी घटना कहनी है, और उसके बाद अगर कुछ सवाल है तो थोड़ा क्वेश्चन आंसर करेंगे। और एक 4 लाइंस मुझे लास्ट में कहने हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम है तो आप लेफ्ट ना कीजिएगा, लेफ्ट ना कीजिएगा, रिक्वेस्ट है। बाकी तो आप 10 मिनट है, आप आराम से अपना समय ले सकते हैं सर। बिल्कुल, मैं तो समय लूंगा जया जी। मैं तो जो लेफ्ट होने का सोच रहे होंगे शायद, तो उनको थोड़ा मैसेज दे रहा था कि ये 10 मिनट रुक जाए, क्योंकि ये मेरे, मुझे नहीं लगता कि कोई छोड़ेगा। ये कई बार ये टेक्निकल इश्यूज होते हैं जिसके कारण वो छूट जाते हैं, बाकी कोई छोड़ना नहीं चाहता आपका सेशन, जहां तक मेरा ख्याल है। जी जी, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं। मैं एक यात्रा बताना चाहता हूँ। अभी हम लोग, मैं और उमा जी, जेंडर इक्वालिटी, रेस, रिलीजन, जो भी डिस्क्रिमिनेशन है उसके लिए इक्वालिटी कैसे लाई जाए, उसके लिए भी काफी सारा काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में भी और डेवलपमेंट सेक्टर में भी। लेकिन मैं बचपन से अगर शुरू करूं तो मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, बड़ा संस्कारी परिवार में पैदा हुआ, अच्छे से मेरा अपब्रिंगिंग हुआ है, बहुत बढ़िया से हुआ। लेकिन जब मैं 6.5 महीने का था, अब ये मुझे याद नहीं है, ये मुझे सूत्रों के अनुसार मुझे मेरी मम्मी ने बताया है कि तेरे साथ ये हुआ था। तो 6.5 महीने का था तब मैं पालने से, झूले से गिर गया था, मैं नीचे गिर गया था ऐसे, तो मुंह के बल गिरा था जैसे कहते हैं ना, तो मुझे नाक पे चोट आई, तो मेरे चेहरे पे थोड़ा सा फेशियल पैरालिसिस का अटैक जैसा हो गया था, तो मेरा चेहरा यूं हो गया था ऐसे। तो मेरी मम्मी बड़ी टेंशन में आ गई कि इसको क्या हो गया, ये गिर गया। उसके बाद तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोले कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन इसको ठीक होने में 2-3 महीना लगेगा, और इतने छोटे बच्चे को ज्यादा दवाई भी नहीं दे सकते, तो थोड़ा थोड़ा डोज हम देंगे और आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये कीजिएगा। तो मम्मी अब मुझे रोज पालने में झुला रही है और रो रही है कि बेटे को क्या हो गया करके। अब उन दिनों में मुहर्रम का टाइम नजदीक आया,
तो ताजिया जुलूस की तैयारियां हो रही थी। मैं जहाँ पे रहता था वहां बिल्कुल सामने चौराहे पे ताजिया रखा जाता था और वहां से जुलूस निकलता था। तो अगले दिन को, जिसको कत्ल की रात बोलते हैं, तो वो ढोल बोल सब बज रहे हैं और उनका जो प्रोसेशन है वो चल रहा था। तो मेरी दादी को क्या सूझा कि मेरी दादी ने मुझे झूले से उठाया और बाहर ले गई, अगाशी पे ले गई और ऐसे वो सामने रखा छत से उन्होंने, और उन्होंने कहा कि हे मोहम्मद, हे पीर, इसको तू ठीक कर दे। अब ये होता है कि दादी और ये सब इसमें बहुत बिलीव करती है, रिलीजियस, और उसमें तो उन्होंने वो मानता कर ली कि इसको ठीक कर दे करके, फिर मुझे फिर झूले में रख दिया। अब ये मेरी माँ तो पहले बहुत कर चुकी थी, कई सारे मंदिर जाना, श्रीफल चढ़ाना, मैं चल के यहाँ जाऊंगी, भगवान तुझे ये चढ़ाऊंगी, ये सब तो हो चुका था मेरे लिए। अब रात को 2:30 सब सो रहे थे और धप से आवाज आई, तो मेरी माँ जाग जाग गई, उन्होंने लाइट ऑन की तो देखा मैं फिर से गिरा हूं। तो वो चिल्लाई कि अरे दीपक फिर से गिर गया। फिर से मुझे गोद में लिया तो देख रही है कि चेहरा बिल्कुल ठीक ठाक हो गया, यूं था ठीक हो गया, मैं तो हंस खेल रहा हूँ। तो बहुत खुश हो गई कि अरे इसको तो ठीक हो गया। डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने बोला आप ठीक है, दवाई बंद कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आपको फिल्म ही लगेगी मेरी कहानी। तो ऐसा हुआ और 4 बजे वो ताजिया जुलूस वहां से, प्रोसेशन वहां से चलते हुए हमारे घर के पास पहुंचा। तो मेरी दादी नीचे उतर के वो ताजिए के नीचे से मुझे 2-3 बार ऐसे करके, वो जैसे करते हैं ना घूमते हैं प्रदक्षिणा, उसी तरह से उस ताजिए के नीचे से निकलना होता है। तो करके श्रीफल चढ़ा के मेरी माँ के हाथ में मुझे दिया और मुझे, मेरी माँ को बोला गया, एक ग्राउंड रूल बना मेरी लाइफ के लिए कि ये जब तक जिएगा हर ताजिया जुलूस पे श्रीफल चढ़ाएगा। फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। तब से लेके आज तक मैं हर साल ताजिया जुलूस में दादी और माँ की श्रद्धा के लिए जाता हूँ, श्रीफल अर्पण करता हूँ, दर्शन करता हूँ, वापस आता हूँ। मुझे महादेव से ज्यादा अली में कनेक्शन मिलता है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। 96 ईयर्स ओल्ड मेरी दादी आज भी मुझे फोन करके पूछती है कि गया था, रोज जाता हूँ। मेरा बेटा भी साथ में आता है, वो 16 साल का है, 16 साल से वो भी साथ में आता है। तो 2 साल पहले वो जब वापस आ रहे थे हम स्कूटर पे, तो मेरा बेटा मुझे बोल रहा था कि पापा आपने બધા ધર્મમાં સેટ થઈ જઈએ नहीं पापा, हम लोग सारे धर्मों में सेट हो जाते हैं नहीं। मैंने बोला हाँ तू हो गया, मुझे करना पड़ा था। 2003 में मैं गवर्नमेंट कॉलेज में अपॉइंट हुआ। 2002 में गुजरात ने बहुत बड़ा रायोट्स का एपिसोड देखा था और मेरी पोस्टिंग जहां पे हुई वहां पे भी बहुत रायोट्स हुए थे। पोस्टिंग हुई, कुछ दिनों बाद मुहर्रम का त्योहार आया, तो शाम को कॉलेज खत्म होने के बाद 5 बजे मैं मार्केट चला गया, एक श्रीफल लिया, और उस टाइम पे ये रायोट्स की वजह से जुलूस निकलना मना था, रथ यात्रा नॉट अलाउड, ये जुलूस नॉट अलाउड, तो अंदर ही अंदर एरिया में आपको करना है सब। तो मैंने पूछा कि ये जो आवाज आ रही है ढोल की वो किस तरफ है। तो मैं कुर्ते पहनता हूँ सालों से, दाढ़ी भी रखता हूँ। तो दुकान वाले ने मुझे ऊपर से नीचे तक देख के कहा वो सब आप लोग मियाँ लोग का एरिया अंदर की तरफ है, जाओ। तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं थी कि मैं मियाँ हूं या महादेव हूं। मैं अंदर गया, मैं दर्शन किया, लेकिन वहां पे श्रीफल दिया तब तक ठीक था, सर पे रुमाल लगाया, श्रीफल दिया और फिर मैंने ऐसे दर्शन किए। तो मुझे 3-4 लोगों ने यहाँ से पकड़ लिया, बोले यहाँ क्यों आए हो, क्योंकि माहौल बड़ा तंग था। तो बोले आप यहाँ क्यों, मैंने बोला मैं दर्शन करने आया हूँ। तो 1-2 लोग बीच में पड़े, उन्होंने मुझे दर्शन करवाए और फिर मुझे बाहर तक एस्कॉर्ट करके छोड़ के आ गए। दूसरे दिन कॉलेज में मैंने जब बताया दोस्तों को, कलीग्स को कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो वो मुझे डांटने लगे कि पूछ के तो जाना चाहिए, आपको पता था रायोट्स की वजह से कितना मामला गर्म था, ये था वो था। तो उस दिन रात को मुझे नींद नहीं आई कि यार मुझे इस एरिया में पढ़ाना है। तो मैंने थोड़े दिनों बाद, मैं एनएसएस ऑफिसर था, नेशनल सर्विस स्कीम का प्रोग्राम ऑफिसर था, तो मैंने 10 स्टूडेंट्स हिंदू और 10 स्टूडेंट मुस्लिम जो अच्छे एक दूसरे के दोस्त भी थे उनको सिलेक्ट किया और मैं ट्रेनर से टीचर बना था। तो मैंने 3-3 घंटे के 2-3 दिन तक उनको सेशंस दिए कि आपको मैं होम स्टे स्कीम में भेज रहा हूं। मैंने खुद का एक प्रोग्राम बना लिया कि आपको 10 दिन एक दूसरे के घर रहने जाना है। मतलब हनीफ जो है वो हरेश के घर रहने जाएगा और हरेश हनीफ के घर रहने जाएगा, इस तरह से। और आपको एक चेकलिस्ट दिया जाता है कि घर में आपको असिस्ट करना है, हेल्प करना है, घर का माहौल स्टडी करना है, तो घर का कल्चर क्या है, खान पान क्या है, ये सब स्टडी करना है और रिपोर्ट करना है। स्टूडेंट्स बड़े एंथुसियास्टिकली रेडी हो गए और मैंने 10 दिन भेज दिया। 10 दिन के बाद जब वो वापस आए तो वो कहने की, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे, बड़े इमोशनल फील कर रहे थे। तो मैंने बोला 1 दिन देता हूँ, कंप्यूटर लैब में बैठ के आप दोनों जोड़ी में बैठ जाओ पार्टनर्स, अपना एक छोटा सा स्लाइड में पीपीटी बना लो और कल आपको 3 बजे प्रेजेंट करना है। और मैं 200 स्टूडेंट्स जो एनएसएस के यूनिट के थे सबको दूसरे दिन हॉल में बिठा दिया और 100-125 स्टूडेंट्स और भी बिठा दिए दूसरे क्लास से लाके, क्योंकि मेरी कॉलेज में 3500 स्टूडेंट्स थे।
तो 300 350 स्टूडेंट्स बैठ गए और इनको मैंने बोला बताओ कि क्या अनुभव रहा। अब स्टूडेंट्स जब स्टेज पे चढ़ के वो अनुभव बता रहे थे तो पूरे क्लास में माहौल बिल्कुल अलग हो गया था, क्योंकि स्टूडेंट्स ये बता रहे थे कि जिस तरह से मेरी मम्मी मुझे सर पे हाथ फिरा के सुबह में जगाती है, उसी तरह से वहां पे इसकी अम्मी जगाती थी। मुझे तो मम्मी और अम्मी में कोई फर्क नजर नहीं आया। और उसने उस टाइम पे वीर ज़ारा फिल्म का डायलॉग सुनाया कि माँ तो यहाँ भी वही होती है और माँ तो वहां भी वही होती है। तो बहुत ही इमोशनल माहौल हो गया प्रेजेंटेशन के बाद। तो मैं स्टेज पे चढ़ा और मैंने माइक्रोफोन हाथ में लेके बोला कि देन माय डियर फ्रेंड्स, वो कौन सी चीज है जो तुमको बांट रही है? अगर माँ यहाँ पे भी वही है, वहां पे भी वही है। और इतना बोल के मैं इमोशनल हो गया, तो मैं उतना छोड़ के मैं सीधा अपने कमरे में चला गया, वो स्टूडेंट्स को छोड़ के। मुझे आज भी याद है, एक भी स्टूडेंट हॉल से बाहर नहीं निकला था। 4 स्टूडेंट्स मुझे वापस बुलाने आए कि सर आइए बात खत्म कीजिए, जो कह रहे थे कहना चाहते थे कह दीजिए। और फिर मैंने कॉम्युनल हार्मोनी पे 1.5 घंटे तक बात की उस क्लास में। और मैंने ये कहा कि ये 10 जैसे निकल गए हैं ना उस माहौल से, वैसे आप 350 भी निकल जाओ। अगर 350 लोग निकल गए तो 350 परिवार कॉम्युनल हार्मोनी में आ जाएंगे। 350 परिवार आ जाएंगे तो 30 गांव बच जाएंगे। 30 गांव बच जाएंगे तो देश बच जाएगा। और ये बहुत सारा काम उसके बाद भी मैंने किया है, आज भी कर रहा हूं। और उस दिन के बाद मैं थोड़ा सा है, शायद आप मेरे से एग्री ना करें ऐसी बात कह रहे हो, उस दिन के बाद मैं शाम को घर आया और मैं जो जनेऊ पहनता था ब्राह्मण वाली, वो जनेऊ पहनना मैंने निकाल के उसको खींची पे लटका दिया। और उस दिन मैंने डायरी में लिखा कि टीचर की कोई कास्ट नहीं होती, चल बोलिया उस देश में जहां तेरी जात न पूछे कोई। टीचर की कोई कास्ट नहीं होती। तो मेरी माँ डांटती है, अब रक्षाबंधन के दिन आएगा तो बोलेंगे जनेऊ पहना, मैंने बोला नहीं पहना। जिसकी इतनी बड़ी रिस्पेक्टफुल जनेऊ को मैं फॉलो नहीं कर पाता तो मैं क्यों पहनूं? तो एक दिन मेरी माँ हंसते हंसते गुस्से में बोली कि तूने तो ब्राह्मण का कुल लजाया। तो मैंने कहा माँ, यहाँ इंसान बनने में इतनी दिक्कत है, ब्राह्मण तो बड़ी ऊंची जगह है। यहाँ इंसान, अच्छा इंसान बनने में 2 बार रोज स्लिप हो जाता हूँ, याद आता है तो फिर से उठ खड़ा होता हूँ। तो पहले अच्छा इंसान बन जाऊं तो ब्राह्मण में अपने आप बन जाऊंगा। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि टीचर की कोई कास्ट नहीं होती, टीचर एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। अगर वो अच्छा इंसान है तो उसकी सारी चीजें अच्छी हो जाएगी। और यहाँ तक बात एंड नहीं हुई, यहाँ तक तो मैं सीखा हूं। अब जिंदगी ने जो सिखाया वो बात करके मैं सेशन को खत्म करूंगा। बेटा 8 साल का था तब मैं गवर्नमेंट में जॉब करता था, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रार था अहमदाबाद में। मैं रहता गांधीनगर गुजरात में हूँ, अहमदाबाद में ऑफिस था। मैं स्कूटर से कम्यूट करता था, अप डाउन करता था वहां। तो वैकेशन था तो बेटा घर पे बोर हो रहा था, पापा क्या करूं, पापा क्या करूं। मैंने बोला चल मैं तुझे मेरे ऑफिस ले जाता हूँ। मैं उसको मेरे ऑफिस ले गया। ऑफिस में पूरा दिन वो इधर उधर खेलता रहा, ग्राउंड में गया, बगीचे में गया, कंप्यूटर पे कुछ देर गेम खेला। हमारा प्यून जो है, जिसको पूरी ऑफिस शराबी कहती है, लेकिन उसके घर वो बच्चा खेलने गया, खाना भी उसी प्यून ने उसको खिलाया। और वापस आते हुए उसने कहा कि मुझे नागजी भाई के घर फिर जाना है पापा। बड़ी दीवारें बना के रखी है सबने। तो बच्चा वहां पर बहुत एंजॉय किया। 5:30 बजे ऑफिस हमारा खत्म होता था, 9 से 5 का टाइम था। 5:30 में स्कूटर में पीछे बिठा के हाईवे पे निकला, लेफ्ट साइड पे गुरुद्वारा आया। गुरुद्वारा आया तो मेरे बेटे ने मुझे सवाल पूछा कि पापा ये क्या है? तो मैंने बोला ये गुरुद्वारा है। बोले गुरुद्वारा माने क्या? तो मैंने उसको जवाब दिया सिखों का मंदिर। और जैसे ही मैंने जवाब दिया, डोंट लीव एनी आंसर अनक्वेश्चन्ड, मैंने पूछा अपने आप से कि ये सिखों का मंदिर क्या चीज है? अगर किसी ने मंदिर दिखा के सिख ने पूछा होता तो वो कहता ना कि हिंदू का गुरुद्वारा। तो मैंने बोला ये तो फ्रेम है। तो मैंने बोला सिख हिंदुओं का जैसे मंदिर होता है वैसे सिखों का गुरुद्वारा होता है। तो बेटे ने कहा हम जा सकते हैं? तो जवाब नहीं दिया, मैंने यू टर्न ले लिया। और एक मॉड्यूल का नाम है यू टर्न इज ऑलवेज परमिटेड। तो मैंने यू टर्न ले लिया, स्कूटर पार्क किया, गुरुद्वारे में गए, चप्पल दिए तो वहां अच्छे अच्छे लोग चप्पल का पॉलिश कर रहे थे। बोले ये कौन? मैंने बोला ये बड़े बड़े अफसर होंगे लेकिन तुम्हारे जूते साफ करके सेवा का मौका ले रहे हैं। गुरुद्वारे में गया, रुमाल लगाया, अच्छी गुरबानी बज रही थी, 15 मिनट बैठा वहां पे, उसने बड़ा अच्छा फील किया। खड़ा प्रसाद मिला शीरे का, बाहर आके ऐसे खा रहा है और 8 साल का बच्चा रो रहा है। मैंने बोला रो क्यों रहा है बेटा? तो क्या पता नहीं मैं क्यों रो रहा हूँ। मैंने बोला गर्म लग रहा है? बोले नहीं बड़ा अच्छा लग रहा है। प्रसाद खाया लेकिन उसकी आंख से आंसू निकल रहे थे। फिर मैंने पूछा नहीं दोबारा। लेकिन
कुछ साल बाद हम लोग दिल्ली आगरा घूमने गए वेकेशन में, तो दिल्ली में शीशगंज साहिब गए। तो वहां गए तो दर्शन तो हो गए, लेकिन बेटे ने कहा पापा मुझे बैठना है। मैंने बोला बैठते हैं। हम तीनों बैठ गए। 1.5 घंटे तक बेटा वहां बैठा रहा और 1.5 घंटे तक गुरबानी सुनता रहा और रोता रहा। और मुझे सारा रिकनेक्ट होने लगा कि अब इसको कुछ पूछना नहीं है। बांग्ला साहिब गए, वहां भी वही। 2015 में हम लोग पंजाब में टीचर्स ट्रेनिंग के लिए गए थे, मैं और उमा जी। तो इसका टिकट स्पेशली बुक किया। तो वहां उसको पग पहनाया। जो स्कूल में हमारा ट्रेनिंग था, वो स्कूल वालों को मैंने बताया कि इसको पंजाब बड़ा कनेक्ट करता है, गुरुद्वारा कनेक्ट करता है। तो उन्होंने उसको पग पहनाया। मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे उसका फोटो भी आपको दिखेगा, आप स्क्रॉल करोगे नीचे तो वो पग पहनाया तो बहुत रोया। और आज उसने वहां से हाथ में पहनने वाला कड़ा लिया और मुझे भी बोला कि पापा आप भी लो ना। तो उस दिन से मैं भी हाथ में कड़ा पहनता हूं। मैंने उसका धर्म अपना लिया और मुझे लग रहा है कि मैं महादेव के घर पैदा होके मैं मोहम्मद में कनेक्ट हो सकता हूं, तो मेरे घर में पैदा होके उसको नानक से कनेक्ट होने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं उसको महादेव पे प्रेशराइज नहीं करता हूं। और ये मेरी बहुत सिंपल सी समझ है कि उसने मेरे रिलीजियंस को, तो इसलिए मैं कुछ शब्द कहूंगा कि कास्ट, कम्युनिटी, रेस, रिलीजन, इकोनॉमिक क्लास, SC ST, ओपन, बॉडी शेमिंग, सारी चीजों से टीचर परे हो जाए तो उसको सिर्फ स्टूडेंट दिखेंगे और स्टूडेंट को एक अच्छा इंसान दिखेगा। तो ये जर्नी जो है मुझे लग रहा है कि 4 शब्दों में खत्म हो सकती है। लर्निंग टू नो, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव and learning to be. Learning to know, learning to do, learning to live and learning to be. जो मैं हूं, I am the unique masterpiece, unique creation of the Almighty God. और मैं अपने आप को जब खोज लूं और मैं उस रास्ते पे चल पड़ूं जिस रास्ते पे द ऑलमाइटी मुझे ले जाना चाहते हैं, तब मेरी शिक्षा संपन्न होती है। और जो रास्ता दिखाता है मुझे अपने आप को खोजने का, अपने आप को ढूंढने का, वो सब दीक्षित है। अब दीक्षित सरनेम है और जिसको दीक्षा मिली है उसको भी दीक्षित कहते हैं। तो हमने दीक्षित से शुरू किया था और दीक्षित से इसलिए खत्म कर रहा हूं और इस बात से खत्म कर रहा हूं कि वी द इंसिडेंट प्रोवाइडर। हम पढ़ाते पढ़ाते कोई कंटेंट को डिलीवर करते करते कोई घटना जो घटती है उसमें अगर हम अल्लाह का दरबार बना ले बिना दीवारों का, तो एक डिफरेंट क्लासरूम की ओर हम बढ़ रहे हैं और एक हम्बल टीचर बनने की ओर, अच्छे इंसान बनने की ओर हम बढ़ रहे हैं। और इसीलिए जब हम अपनी जिंदगी से सीखना शुरू कर देते हैं तो शिक्षक की जीवंत पाठशाला उसको रोज नया सिखाती है, उसको रोज नया बनाती है। तो आई होप कि इस सेशन के माध्यम से मैं मुझ पे करम सरकार तेरा वो वाली बात, और लास्ट में एक लाइन कह के मैं थैंक यू कह देता हूं आपको। मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो गजल, बहुत अच्छी लगती है, आपको भी लगती होगी कि मेरे घर का दरवाजा कोई नहीं है दीवारें गुम और छत भी नहीं है, न दस्तक जरूरी न आवाज देना, हा? मेरे घर के आगे मोहब्बत लिखा है। जो दिल से पढ़ाते हैं वो प्यार से पढ़ाते हैं एंड लव हैज सारे सवालों के जवाब प्यार के पास है। सो लेट अस नॉट compete with each other, let us complete with each other. The only difference of alphabet is L and L represents love. अगर आप दिल से पढ़ाएंगे, इश्क, अपने प्रोफेशन से इश्क करेंगे, तो फिर तो वो ही आपको बहा ले जाएगा, तो फिर आप उसमें बहते रहेंगे। आई होप मैंने कुछ मुद्दे शेयर किए हैं और कुछ रह गए हैं, लेकिन थैंक यू वेरी मच। मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये वर्चुअल सेशन था फिर भी मैं तो कनेक्ट हो गया था। आप अपना फीडबैक में बता सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू जया जी कि आपने ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की मुझे कि उद्दीपक आपके बीच में आके थोड़ी बहुत बातें शेयर कर सके अपने लाइफ की। थैंक यू दीपक जी, नमस्ते और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी जीवन के जो सबसे गहन अनुभव है अपने जीवन में से जो दिए हैं, वो शायद इसीलिए हमें छू पाए हैं क्योंकि वो आपके जीवन से हैं, दूसरों के जीवन से ली हुई कहानियां नहीं है। और सब उससे रिलेट कर सकते हैं, सब अपने आप को वहां आपके
जगह पर रख के देख भी सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि कहाँ आगे बढ़ना जरूरी है। और आपने इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए हैं। मुझे लगता है सबसे अच्छा जो आपने आखिरी में कहा है कि अपने आप को जान पाना, पहचान पाना, ईश्वर ने जिस काम के लिए हमें यहाँ भेजा है उसको कर पाना, और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जिस तरह की जितनी भी आपने बातें कही हैं, मुझे लगता है हर एक स्टेटमेंट आपका एक कोट है, एक कोट बन सकता है जिसको हम अपनी लाइफ में एक लेसन की तरह रोज फॉलो कर सकते हैं। और मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि इतने सारे विटनेसेस के सामने कि ये जो आपने पत्र लिखने वाली बात कही है, ये मैं अपनी बेटी के लिए लिखना शुरू करने वाली हूँ, और आपका आशीर्वाद चाहती हूँ कि ये मैं कर पाऊँ, और मुझे विश्वास है कि मैं शायद कर पाऊंगी। सो आई वुड लाइक आप कर ही लेगी। आप बड़े अच्छे से स्टूडेंट्स के साथ भी करते हैं, आप अपनी बेटी के साथ भी कर लेगी, और आशीर्वाद एक ही जगह से आता है सबको। शुभकामनाएं मैं दे सकता हूँ, आशीर्वाद तो हम सबको वहां से बटोरने हैं। सही बात है। और वैसे देखा जाए तो एक शिक्षक के लिए अपने बच्चे या हम जिन विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं उनमें कोई अंतर नहीं होता खास। और एक बार ये लॉ जब लग जाती है और हम समझ जाते हैं कि किस तरह से हम अपने जीवन का एक हिस्सा उन तक दे सकते हैं, तो फिर हम सिर्फ अपने बच्चों तक सीमित नहीं रहते हैं, हम सब तक पहुंच जाते हैं। और जैसे आपने कहा कि हम गांवों में बदलाव ला सकते हैं, हम शहरों में ला सकते हैं, हम देश में और इस दुनिया में ला सकते हैं। थैंक यू फॉर मेकिंग अस रियलाइज where our influence stops. It actually never stops. There is no end to it. So let us make it like a chain reaction. हर बच्चा जो हमारे थ्रू निकलता है वो भी आगे जाके कितने जीवनों को टच करता है, उसके संपर्क में आता है, और वो भी आगे तक बदलाव लेकर जाता है। थैंक यू सो मच सर। एक क्वेश्चन है यहाँ पर कल्याणी जी का, कि आप अपने अनुभव के आधार पर वो कुछ ऐसे स्किल्स बताइए जो हम अपने बच्चों में हमें डालना चाहिए जिससे वो एक अच्छे इंसान बन सकें। A few we must imbibe in our kids. बिल्कुल, मैं सिंपली एक सेंटेंस में मुझे जो अंदर से जवाब आया वो मैं ये कहूंगा कि बच्चों को हमें कुछ सिखाना नहीं है, मतलब गाइड नहीं करना है। वी हैव टू फॉलो आवर चिल्ड्रन। अगर आप उसको फॉलो करेंगे ठीक से, तो उसको क्या क्या सिखाना है वो उसमें से ही निकल के आएगा, अपने आप आएगा, अलग अलग तरीके से आएगा। मैं अभी तो टाइम नहीं है, लेकिन एक मैं वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल, ये जो आपको लोगो दिख रहा है, उस पर मैंने एक सैंडविच वाला इंसिडेंट शेयर किया है अभी मेरे बेटे का, कि उसने एक सैंडविच स्टॉल बनाया था उसमें। तो जो स्किल्स की बात कह रहे हैं, तो मैं 3 शब्द कहना चाहूंगा कि नॉलेज, स्किल्स, और तीसरा है एटीट्यूड। तो हम जो टीचर्स काम करते हैं, मतलब ये KSA इस तरह से होता है, तो हम लोग ज्यादा फोकस्ड नॉलेज पे हो जाते हैं, थोड़ा बहुत हम स्किल पे भी फोकस्ड हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उल्टी करनी शुरू करें, पहले हम एटीट्यूड पे काम करें, फिर हम स्किल सेट्स पे आए, और फिर नॉलेज उसके पीछे पीछे अपने आप चला आता है। अगर उस अप्रोच से अगर हम बच्चों के साथ काम करें, तो जो पर्टिकुलर लाइफ स्किल्स जो है, क्योंकि हर एक बच्चे की नीड, एवरीबडी इज ए यूनिक मास्टरपीस, मैंने यही कहा, तो हर एक बच्चे की नीड अलग अलग है। और हम वहां पे मुश्किल आ जाती है कि हम सबको एक ही चीज सिखाना चाहते हैं, एक ही तरीके से सिखाना चाहते हैं। तो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल से अगर हम उसको कनेक्ट कर पाए, तो KSA को आप अगर हम उल्टा कर दे, देन आस्क विल बिकम टास्क। T is for teacher, T is for trainer। तो टीचर का जो आस्क है वो टास्क में कन्वर्ट हो जाए कि ASK से हम काम शुरू करें, तो हम बड़ी। और मैं सबसे बड़ा जो मुझे काम में आया है वो ये लग रहा है मुझे कि एरिस्टोटल से मैं ये सीखा हूं कि क्वेश्चनिंग से बड़ा कोई टूल नहीं है। तो कोई भी बच्चे के साथ आप छोटा सा सवाल कीजिए, वो जो जवाब दे रहा है उसमें से फिर एक सवाल कीजिए, वो फिर जवाब देगा, फिर एक सवाल कीजिए, और एक लेवल के बाद ये होगा कि उसके जवाब और सवाल दोनों शांत हो जाएंगे। वो कहेगा मुझे अब कोई सवाल भी नहीं है और मुझे जवाब भी मिल गया है। तो थैंक यू। आंसर है, लेकिन थोड़ा सोचिएगा इस पे। थैंक यू। बिल्कुल। तो आप जो मुझे समझ में आया वो यही है कि सारे जवाब बच्चे के अंदर हैं। हमारा रोल ये है कि हम कैसे बच्चे के अंदर वो इंसाइट डेवलप कर सकें कि वो अपने अंदर से ही वो सवालों को निकाल सके, अपने जवाब अपने अंदर से ही पा सके। Thank you so much, sir. I would like all the participants to know कि so the first time I heard sir was at the platform of ETST, that is
education today, society tomorrow. So I'm thankful to IOFC, the IOFC Center at Asia Plateau, and ETST, where we get to meet people like you and such friends. They make such a positive impact on your life. So thank you for being a wonderful friend to me and now to so many people, for bringing a positive impact in our lives. If any participants would like to speak up, maybe for a minute or two, sir, are you fine with that? या हाँ, अगर कोई अपना विचार रखना चाहे या कोई सवाल रखना चाहे या कुछ भी अपने मनोविचार से प्रस्तुत करना चाहे, प्लीज फील फ्री, unmute yourself and you can speak. We may just use a few minutes for that and we'll then close the session. आप अपना अप्रिसिएशन भी जाहिर कर सकते हैं अनम्यूट करके. देवी वेंकटेश जी, कृपया प्रेजेंट मत करिए स्क्रीन. Okay, so no one would like to express. Okay, but sir, I would like you to know कि चैट में सभी ने लिखा है कि उन्हें आपका सेशन बहुत ही प्रेरणादायी लगा है and everyone feels inspired. It was very insightful. Just one last. Yes, I would like to speak. Yes, ma'am. Yes. Tell your name, please. Yes, ma'am. Good evening, sir, and Good good evening, everyone. Good evening. Yeah, it's just back to my own childhood, sir. I would like to say I used to travel with my father everywhere, wherever he used to go. I used to go with him till the date he asked me, "बेटा, no बेटा, अब और नहीं बाबू, अब मम्मा के साथ रहना सीखो कि अब मैं तुम्हें हर जगह अपने साथ लेकर नहीं जा सकता." Till 10 or 11 years, beside the office, I used to go, and I love going with him. And he used to go to satsang and other places also sometime. Even if market for vegetables also he was going, I was just following him. And I felt like that today itself, that I am again listening to my father. Thank you so much. Thank you so much. बहुत बड़ा फीडबैक आपने मुझे दे दिया. Oh, that's wonderful. जब मैं बहुत I got my all positivity with my बहुत father. अलग तरीके से कनेक्ट कर दिया. थैंक यू. Thank you. Thank you so much. Yes, somebody is saying something. Jaya, Pratika Martukani. Yes. Yeah. हाँ, वनीता मैम बोलिए. Yeah, I just Yes. want to say a big thank you to Deepak, and I've just seen him after many years. I met him at IOPSI. Yes. I would like to reconnect with him, and I will do that very soon. Thank you so much for such an inspirational talk. I did miss a bit in the middle, but I'm sure I'll get it back from Jaya. बिल्कुल Thank you बिल्कुल so मिलते much. रहेंगे. थैंक यू. Thanks, Jaya, Yes, for organizing. this is Thank contact. you. थैंक यू वनीता जी. वनीता जी एक और मेरी फ्रेंड है जो कि ETST के माध्यम से मिली है. सो थैंक्स टू ऑल दोज, यू नो, मुझे लगता है सब डेस्टिनी होती है और इसीलिए हम अलग अलग लोगों से अलग अलग जगहों पर मिल पाते हैं. और वनीता जी को ये भी कहना है मुझे कि मुझे तो आपके घर भी आना है, क्योंकि लास्ट जब हम Exactly, I'm waiting. Good you remembered. तो वो चिट्ठी में आपका नाम निकला था, तो मुझे तो आपके घर भी आना है.